Success Mantra. We shape future. Hello, future judges, advocates, and corporate lawyers. My name is Abhay Singh, and I welcome you all in another video session of Pravani. So, Pravani is Success Mantra's monthly magazine, and in this particular video, we will be dealing with the August edition. So, the current affairs of August in the September edition. So, let's start with the table of content. That what are the important things that we will be covering this particular video session. So, these are the few important topics that we will be in this particular video. So the first important topic that we are going to deal in this particular session will be the Wayanad landslide. Then another important topic, and this is a very important topic, that the Supreme Court declared sub-classification valid. Then we will see what was the performance, or what is the India's performance at 33rd Paris Olympics, or 33rd Olympics, which took place in Paris. Then we have another important topic with us to cover, Bangladesh crisis. Then we have the controversial presidential elections of Venezuela, जहाँ पे प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस के बाद जो वहाँ के प्रेसिडेंट थे उन पे ये एलिगेशन और एक्यूजेशंस लगे कि वो इलेक्शंस रिग्ड थे. फिर उसके बाद हम प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का जो विजिट हुआ था पोलैंड और यूक्रेन, उसके बारे में डिस्कस करेंगे. देन वी विल डिस्कस समथिंग अबाउट द यूएस इलेक्शंस and the presidential candidates of US elections, Kamala Harris. Then we will discuss another important law that has been enacted by the government of UP, anti-conversion law of UP. Then we have August 2024. Then we will see polygraph test, which was recently conducted on the primary accused, or the main accused of Kolkata rape and murder case. Then we have Kosi Mechi river linking project. Then we have India-Japan 2+2 ministerial dialogue. Then we have another important topic, and this topic is also very important, National Space Day. This particular topic is important because in 2024, India has celebrated its maiden Indian National Space Day on 23rd of August 2024. We have started celebrating this particular day because on 23rd of August 2023, India's aspirational mission Chandrayaan-3 landed on the south pole of the moon. Now, this particular topic is also very important. Now, each and every topic which have been discussed is important, but these topics are very important. So there is a classification between an important topic and a very important topic. So these are, very important topics. Like India at 33rd Olympics, then we have Bangladesh crisis, then we have this visit of Prime Minister Narendra Modi, then we have this UP anti-conversion law. This is also important. Polygraph test. Then passive euthanasia becomes very important because while hearing the petition while hearing the suo motu cognizance petition, तो कोलकाता रेप और मर्डर केस का suo motu cognizance लिया था सुप्रीम कोर्ट ने, उस टाइम पे उन्होंने एक पर्टिकुलर इंसिडेंट को डिस्कस किया था, अरुणा शॉन्गबोंग का. उस पर्टिकुलर रीजन की वजह से टॉपिक इंपॉर्टेंट हो जाता है. देन दिस टॉपिक, यूनिफाइड पेंशन स्कीम, व्हिच वाज रिसेंटली अप्रूव्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इज very important. Then we have India Defence Pact to deepen cooperation. Then we have Supreme Court's ruling on SC and ST Act 1989. Then we have Air Quality Index. Then we have Waqf Amendment Bill 2024. Now this particular topic, Waqf Amendment Bill 2024, is also very important. This particular topic is also very important. Then we have UPS versus NPS versus OPS. This particular topic is also very important. Then we will see the arbitration petition, which was filed in the Court of Arbitration for Sports by the Vinesh Phogat. This is also very important. Then we have another important topic that we have to deal in detail, is the call for secular civil code from Red Fort. So why this particular topic becomes important? Because after assuming the charges of Prime Minister for the third state term, while delivering his Independence Day speech, Mr. Modi from the Red Fort has said that this is the right time when India should adopt a secular civil code. Now, secular civil code here means uniform civil code under Article 44 of the Indian Constitution. Idol in temple must be treated as a living person. This particular topic also is very important. Then Foundation Day of Puducherry. Then we have Foundation Day of Puducherry. Then we have Gallantry Awards. This particular topic is also very important. Recently, Government of India has announced or have conferred
Gallantry awards on 103 people in 2024. Then we have 10th edition of Mitra Shakti exercise. Then National Film Awards. Then SEBI. Then INS Arihant. Now INS Arihant is also very important. We cannot leave or skip this particular topic, INS Arihant. So these are few important topics that we'll be discussing in this particular video. We will be giving 2 to 3 minutes to each and every topic. To get the proper understanding, a proper or a comprehensive reading of this particular magazine is very, very important. Before moving ahead, I just want to assure you that this particular magazine is very exhaustive. The team of Success Mantra has done a phenomenal job while preparing this particular magazine. So you can trust and rely on this particular topics that the knowledge or the information is complete and exhaustive. If common law admission test, if the consortium of CLAT will ask any question or any paragraph from these particular topics, then I can assure you कि जो information इस particular topics में दी गई है इससे बाहर कुछ भी नहीं होगा. So on that note, we'll start with the first topic. And the first topic that we have with us is Wayanad landslide. अब हम Wayanad landslide के बारे में कवर करेंगे. तो वायनाड में रिसेंटली बहुत ही एक ट्रेजिक लैंडस्लाइड हुआ और 3 गांव जो 3 विलेजेस थे, they were completely swept away by this landslide. अब जो इसमें ह्यूमन कैजुअलिटीज थी वो बहुत ही ज्यादा थी. ह्यूमन कैजुअलिटीज क्लोज टू 300. ऑफिशियल डेटा है कि 300 लोगों की जान गई है, बट वी ऑल नो कि ऑफिशियल डेटा और एक्चुअल डेटा में देयर इज ऑलवेज अ डिफरेंस, बिकॉज देयर आर मेनी बॉडीज जिन्हें अभी तक हम ढूंढ ही नहीं पाए. बहुत सारी डेड बॉडीज ऐसी हैं जिन्हें हम अभी तक ढूंढ नहीं पाए. अभी तक ऑफिशियल डेटा में उन्हें इंक्लूड नहीं किया गया. सो ऑफिशियल डेटा बहुत ज्यादा है. फिर ये सारे पॉइंट जो बेसिकली लैंडस्लाइड होती क्यों है, मेजर कॉजेज क्या है लैंडस्लाइड के, तो ये सारी चीजें भी हमारे लिए थोड़ा सा ये सारी चीजें भी इंपॉर्टेंट हैं जिन्हें हमें डिस्कस करना है. देन वी हैव कॉजेज ऑफ लैंडस्लाइड. लैंडस्लाइड होता क्यों है, तो लैंडस्लाइड के रीजंस भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है. बट अगेन to have the complete information is very much important. बट आपको ये भी पता होना चाहिए कि एग्जाम के लिए क्या चीजें हमारे लिए इंपॉर्टेंट है और क्या इंपॉर्टेंट नहीं है. तो कॉजेज ऑफ लैंडस्लाइड्स आर नॉट दैट इंपॉर्टेंट. आप बस एक ऐसे जर्नल रीडिंग दे सकते हैं इस पर्टिकुलर जिसको कि लैंडस्लाइड्स के रीजंस क्या क्या होते हैं. हैवी रेनफॉल, देन वी हैव सॉइल इरोजन, अनदर इंपॉर्टेंट रीजन, देन वी हैव अर्थक्वेक्स, एंड देन वी हैव वोल्केनिक इरप्शन. सो दीज आर द मेन रीजंस कि कहीं पर भी लैंडस्लाइड क्यों होता है. Then we have anthropogenic causes. Now, what are these anthropogenic causes? So, anthropogenic causes are basically जो man-made reasons हैं या जो artificial reasons हैं वो क्या हैं? So, deforestation is one, encroachment in vulnerable terrains is another, uncontrolled excavation is the third, and the climate change is fourth. So, uncontrolled excavation is one of the most important reasons landslide क्यों होते हैं. And in the name of development, we have done a lot of concretization. हमने concrete बहुत सारा concrete बिछा दिया है डेवलपमेंट के नाम पे, और उन एरियाज में भी concretization हो रहा है जो एरियाज बहुत ज्यादा vulnerable हैं. जो बेसिकली उन एरियाज में भी हो रहा है जो vulnerable हैं, और vulnerable के साथ साथ वो किसी भी नेचुरल कैलेमिटी वहां पर हो सके तो अगर होने के चांसेस भी बहुत ज्यादा हैं. उन एरियाज में भी बहुत ज्यादा डेवलपमेंट के नाम पे हम उन एरियाज में इंक्रोच कर रहे हैं. प्राइमरी एग्जांपल क्या है, जैसे अभी हम ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट के बारे में जानते हैं. इट इज अ 72,000 करोड़ रुपीस एस्पिरेशनल प्रोजेक्ट, बट जिस पर्टिकुलर एरिया के लिए प्रोजेक्ट अप्रूव किया गया वो बहुत ही इकोलॉजिकली दैट इज अ सेंसिटिव एरिया. सो ये सारे रीजंस हैं. अब टाइप्स ऑफ लैंडस्लाइड, फॉल्स, टॉपर्स एंड स्लाइडिंग. ठीक है, सो ये अलग अलग तरीके की लैंडस्लाइड्स होती हैं. जैसे फॉल्स हो गया, देन वी हैव टॉपर्स, देन वी हैव स्लाइड्स. Involve the collapse of a material from a steep slope of cliff which then falls and accumulate at the base. Topples characterized by the forward rotation and movement of falling materials around the pivot point near the base. Involve movement along a defined zone of weakness, separating the moving material from a more stable layer beneath. तो बेसिकली आप इनको बस एक रीडिंग दे सकते हैं. आप अपने एग्जाम को लेकर के एक चीज मेक श्योर करिएगा कि ये सारी चीजें टॉपिक की कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग के लिए जरूरी होती हैं. बट इन पर्टिकुलर टॉपिक से कोई सवाल पूछा जाए एग्जाम्स में उसके चांसेस थोड़ा सा कम है. अब इम्पैक्ट क्या होता है लैंडस्लाइड का, सो लीव द इम्पैक्ट्स ऑफ लैंडस्लाइड. आप किसी भी नेचुरल कैलेमिटी के इम्पैक्ट्स क्या हो सकते हैं, अगर आपको इतनी इन्फॉर्मेशन है तो बस आपके पास सफिशिएंट इन्फॉर्मेशन है. क्योंकि किसी भी जो
नेचुरल कैलामिटी के इम्पैक्ट्स होते हैं वही सेम इम्पैक्ट्स होते हैं लैंडस्लाइड के, लाइक लॉस ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी। हर एक नेचुरल कैलामिटी में आप लैंडस्लाइड ले लीजिए, आप फ्लड ले लीजिए, आप वोल्केनिक इरप्शन ले लीजिए, आप अर्थक्वेक ले लीजिए, आप सुनामी ले लीजिए, इंफ्रास्ट्रक्चर डैमेज भी सब में कॉमन होता है, एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन भी सब जगह होता है, और इकोनॉमिक कॉस्ट भी बहुत ज्यादा होती है। मैंने आप लोगों से पहले भी बहुत बार कहा है कि देयर आर सर्टेन जनरल प्रॉब्लम्स जिनके कुछ जनरल सॉल्यूशंस हमारे पास अवेलेबल होते हैं। तो ये सारी चीजें उसी पर्टिकुलर टॉपिक के अंडर फॉलो करेंगे। Now this particular thing is important for your examination point of view. Landslide atlas by India. Landslide atlas of India by ISRO. India is one of the top 5 countries globally vulnerable to landslide along with China, US, Italy and Switzerland. Basically we are in top 5 जब हम landslide vulnerability की बात करते हैं, so India is in top 5 along with 4 other countries that are China, US, Italy and Switzerland. So ये 4 countries भी इंडिया के साथ बहुत ज्यादा landslide prone है। Then around 0.42 million square kilometer or 12.6% of India's land area is at the risk of landslide hazard. Now this information is also very relevant that 12.6% of India's land is basically prone to landslides. So this information is relevant कि इंडिया का कितना एरिया है जो लैंडस्लाइड प्रोन है, 0.42 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर which is 12.6% of India's total land area. Now distribution of landslide in India. Distribution of landslides in India. अब इंडिया में कहाँ पर कितनी लैंडस्लाइड आने के चांसेस रहते हैं? तो नॉर्थ वेस्टर्न हिमालय में 66.5%, नॉर्थ ईस्टर्न हिमालय में 18.8% एंड वेस्टर्न घाट्स में 14.7% लैंडस्लाइड्स आते हैं। Now the Geological Survey of India (GSI) estimates that economic losses from landslide could account for 1 to 2% of GNP in many developing nations. So this is not important for us because this is the general information. Then we have a key landslide prone areas in India. The northeastern region which makes up about 50% of the total landslide prone zones. Then we have states like Uttarakhand, Himachal Pradesh and Jammu and Kashmir along with the Himalayan range. यहाँ पर भी landslide आने के chances जो है वो बहुत ज्यादा है। फिर महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका, फिर अराकू रीजन इन आंध्र प्रदेश along the eastern ghats. अब ये सारी चीजें हैं जहाँ पे लैंडस्लाइड आ सकते हैं। अब कुछ इंडिया के सिग्निफिकेंट लैंडस्लाइड जिनके बारे में हम डिस्कस कर सकते हैं। तो इंडिया के कुछ मेजर लैंडस्लाइड जिनके बारे में हमें डिस्कस करना चाहिए, दो लैंडस्लाइड्स आर बेसिकली केदारनाथ इन उत्तराखंड, पेड्डुमुडी इन केरला, मुंबई इन महाराष्ट्र, टूपाल मणिपुर में 2022 में बहुत ही ट्रेजिक लैंडस्लाइड हुआ था, फिर रायगढ़ महाराष्ट्र 2023। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट लैंडस्लाइड्स हैं जो इंडिया में हुई थी और इनमें जो इकोनॉमिक और ह्यूमन लॉस था वो बहुत ज्यादा था। अब गवर्नमेंट के क्या क्या एफर्ट्स हैं, तो आप इन एफर्ट्स को थोड़ा सा एक अच्छे तरीके से कवर करेंगे। For this specific topic, under this specific topic, this information is very relevant. Government's effort to mitigate landslide risk in India. अब लैंडस्लाइड्स को कम करने के लिए, उनके रिस्क को कम करने के लिए गवर्नमेंट ने एक नेशनल लैंडस्लाइड रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रेटजी 2019 में लॉन्च की थी। आप ये याद रखेंगे दैट National Landslide Risk Management Strategy was launched in 2019. Then we have Landslide Risk Mitigation Scheme (LRMS). Then we have Flood Risk Mitigation Scheme (FRMS). Then we have National Guidelines on Landslide and Snow Avalanches. So now this is important. Guidelines from the National Disaster Management Authority that cover hazard assessment, risk management, etc. So ये सारी चीजें देखिए। अब landslide atlas of India. Now this is very important to understand that what is this landslide atlas of India. So landslide atlas of India is basically a detailed resource documenting landslide events in vulnerable areas across the country. तो अभी हमने देखा कि 0.42 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर जो इंडिया का एरिया है वो लैंडस्लाइड प्रोन है। तो जो लैंडस्लाइड प्रोन एरियाज है, वल्नरेबल एरियाज हैं, उनमें बेसिकली लैंडस्लाइड का एक डिटेल्ड रिसोर्स रहता है कि जो सारे ये जो लैंडस्लाइड एटलस है इसमें जो भी मेजर लैंडस्लाइड होती है उनको डॉक्यूमेंट किया जाता है। फिर उनमें जो डैमेज असेसमेंट होता है स्पेसिफिक साइट से रिलेटेड, जैसे कि वायनाड में जो लैंडस्लाइड हुआ है, अब इसको लैंडस्लाइड एटलस ऑफ इंडिया में रिकॉर्ड किया जाएगा। टोटल कितना डैमेज हुआ है इस चीज को भी वहां पे डॉक्यूमेंट किया जाएगा। लैंडस्लाइड एटलस ऑफ इंडिया इज प्रिपेयर्ड बाय, नाउ दिस इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। लैंडस्लाइड एटलस प्रिपेयर कौन करता है? नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर एनआरएससी प्रिपेयर करता है अंडर द गाइडेंस ऑफ इसरो। So this information is relevant for you. You have to keep it in your mind. Then we have recommendations of various committees. So आप ये सारी चीजें भी एक बार देख सकते हैं। बहुत ज्यादा डीप में जाकर के कवर करने की आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन की जरूरत नहीं है कि कौन सा स्पेसिफिक सेक्शन है जो
इन तरीके की प्रॉब्लम्स को डील करता है। बस आप एक बार ऊपर ऊपर एक जर्नल रीडिंग दे सकते हैं। और कमिटीज का अपना नाम याद रखिएगा, कमिटीज की रिकमेंडेशंस याद रखने की आपको जरूरत नहीं है। कस्तूरी रंगन कमेटी है आपके पास, आप कस्तूरी रंगन कमेटी का बस आपको नाम याद रखना है, ठीक है। कि किस चीज से रिलेटेड थी, वेस्टर्न घाट और इन सारी चीजों से, कॉस्ट प्लानिंग, हाईली पोल्यूटिंग इंडस्ट्रीज। अब एक चीज आप लोग याद रख सकते हैं कि कस्तूरी रंगन कमेटी ने जो पॉल्यूटिंग इंडस्ट्रीज है उनको रेड इंडस्ट्रीज बोला था। फिर मेजर्स टू प्रिवेंट, अब हम क्या 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 चीजें कर सकते हैं लैंडस्लाइड को प्रिवेंट करने के लिए। अगेन यू हैव टू अंडरस्टैंड योर्स इज अ मल्टीपल चॉइस बेस्ड एग्जामिनेशन, योर्स इज अ मल्टीपल चॉइस बेस्ड एग्जामिनेशन। आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चंस के आंसर नहीं करने हैं। सो फॉर दैट स्पेसिफिक रीजन आप इस पर्टिकुलर पॉइंट को स्किप कर सकते हैं, मेजर्स टू प्रिवेंट लैंडस्लाइड हैजार्ड्स। देन वी हैव बिल्डिंग कोड, दीज आर वेरियस सजेशंस कि आप क्या क्या चीजें कर सकते हैं लैंडस्लाइड प्रिवेंट करने के लिए। और मैं आप लोगों से बार बार कहता हूँ कि प्रिपरेशन आपकी तब तक कंप्लीट नहीं है जब तक आप किसी भी टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस को सॉल्व नहीं करेंगे। तो आप प्लीज टॉपिक कवर करते ही आप सबसे पहले आपका अप्रोच ये होना चाहिए कि आप क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो अब ये चीज कॉमन रहेगी सारे 30 के 30 जो टॉपिक हम जो डील कर रहे हैं उन सारे 30 टॉपिक्स के लिए ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए कॉमन है, जिससे आपको दिमाग में। अब हम सुप्रीम कोर्ट का एक बहुत ही हिस्टोरिक और इम्पोर्टेंट जजमेंट आया है जिसे हमें याद रखना है। हम जजमेंट के बारे में कुछ कुछ चीजें हम डिस्कस कर लेते हैं। तो दिस पर्टिकुलर जजमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट वाज डिलीवर्ड ऑन 1st of August 2024। 1st August 2024 को सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट डिलीवर किया था। जजमेंट जिस पर्टिकुलर केस में डिलीवर किया गया उस केस का नाम क्या है? केस का नाम है द स्टेट ऑफ पंजाब एंड अदर्स वर्सेस दविंदर सिंह एंड अदर्स। इस पर्टिकुलर जजमेंट में 7 जजेस की एक सुप्रीम कोर्ट की 7 जजेस कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ने जजमेंट डिलीवर किया है। 7 जजेस कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ने जजमेंट डिलीवर किया है 6:1 के रेशियो में। 6:1 के रेशियो का मतलब क्या है कि 6 जजेस फेवर में थे कि सब क्लासिफिकेशन अलाउ कर देना चाहिए और जस्टिस बेला एम त्रिवेदी इन्होंने अपना डिसेंटिंग ओपिनियन दिया है। अब ये जो 6 जजेस थे मेजॉरिटी में, आप इनका नाम चाहें तो याद रख सकते हैं बिकॉज दे मे आस्क दिस द नेम ऑफ द जजेस एज वेल बिकॉज यू गाइस आर लॉ एस्पिरेंट्स, आप लॉ एंट्रेंस एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं और उस पर्टिकुलर रीजन की वजह से आपको जजेस का नाम याद रखना इंपॉर्टेंट हो जाता है। सबसे पहला नाम आता है सीजीआई डॉक्टर डीवाई चंद्रचूड़। देन वी हैव जस्टिस बीआर गवाई। Then we have Justice Vikram Nath. Then we have Justice S.C. Sharma. Then we have Justice Manoj Mishra. And lastly we have Justice Pankaj Mittal. So these are 6 judges जिन्होंने मेजॉरिटी जजमेंट दिया था। सीजीआई डॉक्टर डीवाई चंद्रचूड़, डॉक्टर जस्टिस बी आर गवाई, जस्टिस विक्रम नाथ, जस्टिस एस सी शर्मा, जस्टिस मनोज मिश्रा एंड जस्टिस पंकज मित्तल। अब इन 6 जजेस में भी आपको जस्टिस बी आर गवाई का नाम याद रखना है। जस्टिस बी आर गवाई का नाम आपको क्यों याद रखना है? क्योंकि जस्टिस बी आर गवाई ने बेसिकली बोला था कि जो क्रीमी लेयर का कॉन्सेप्ट होता है, दिस इज द राइट टाइम जब हमें क्रीमी लेयर के कॉन्सेप्ट को एससीज और एसटीज के लिए extend कर देना चाहिए। For that specific reason, the name of Justice B.R. Gawai becomes extremely important. So let's understand other aspects as well of this particular topic. So the definition of scheduled caste is given under Article 366 clause 24 of the Indian Constitution. So the definition is given under Article 366 clause 24 of the Indian Constitution. And another important thing that you have to keep in your mind that section Article 366 clause 24 defines the term SC, whereas Article 366 clause 25 defines the term ST. ये सारी फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है जो आपको याद रखनी ही रखनी है। यू कैन नॉट अफोर्ड टू स्किप दिस इंफॉर्मेशन। अब देखिए हमें ये पता चल गया कि एससी और एसटी को डिफाइंड कॉन्स्टिट्यूशन में कहा किया गया। इसके अलावा आपको एक इंपॉर्टेंट आर्टिकल है जो याद रखना है, Article 338. Now why Article 338 is important? Article 338 is important only for one reason, because Article 338 talks about National Commission for Scheduled
caste. अब scheduled National Commission for Scheduled Caste is given under Article 338. Now, who is the chairman of National Commission for Scheduled Caste? तो आप इनका नाम याद रखेंगे, मिस्टर किशोर मकवाना. Mr. Kishore Makwana is the chairman of National Commission for Scheduled Caste. Now I will leave you with one question that you have to see by yourself, and I will tell you the source आपको देखना कहाँ से. इंडिया में लास्ट सेंसस हुआ था 2011 में, तो आप ये इन्फॉर्मेशन नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट के ऑफिशियल वेबसाइट से जाकर के एक्सेस कर सकते हैं कि एज पर द सेंसस ऑफ 2011 इंडिया में कितने शेड्यूल्ड कास्ट हैं. ठीक है, अब देखिए, अब थोड़ा बहुत हम क्लासिफिकेशन और सब क्लासिफिकेशन के बारे में देख लेते हैं, फिर हम नेक्स्ट टॉपिक पे मूव करेंगे. अब जो 2024 में जजमेंट सुप्रीम कोर्ट ने डिलीवर किया, 2024 में जो सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट डिलीवर किया है, इस पर्टिकुलर केस में एक 20-year-old जजमेंट था जिसे सुप्रीम कोर्ट ने ओवरटर्न किया. अब ये 20-year-old जजमेंट कौन था जिसे ओवरटर्न किया गया? तो 20-year-old जजमेंट का नाम है ईवी चिन्नैया वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश. Now this particular judgment was delivered by a 5 judges constitution bench of Supreme Court. 5 judges constitution bench ने इस judgment को deliver किया था 2004 में. ठीक है, so this is also very important. आप इस information को भी नहीं भूलेंगे कि जो 2024 में judgment deliver किया गया, इस particular judgment में 20-year-old judgment था ये चिन्नैया वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश का, जिसे ओवरटर्न किया गया. अब एक क्लासिफिकेशन और सब क्लासिफिकेशन का एक बेसिक एग्जांपल हम लोग समझ लेते हैं. Classification means when we are talking about a specific class. Take one example. आप सबने मिंत्रा और फ्लिपकार्ट पे शॉपिंग किया होगा. अब मिंत्रा और फ्लिपकार्ट पे शॉपिंग करके आपको ये चीज पता चल गई होगी कि देयर आर स्पेसिफिक कैटेगरीज. जब आप टेक वन एग्जांपल, कैटेगरीज क्या हो गई? जैसे आपकी एक कैटेगरी हो गई बॉटम वेयर, एक कैटेगरी हो गई आपकी टॉप वेयर, एक कैटेगरी हो गई आपकी फुटवेयर. अब हम फुटवेयर की बात कर लेते हैं. फुटवेयर इज वन कैटेगरी. अब अगर आप इसे फर्दर सब कैटेगराइज करते हैं तो सब कैटेगरीज क्या हो जाएंगी? स्लीपर्स, स्नीकर्स, फॉर्मल शूज, कैजुअल शूज. So these are सब कैटेगरीज. सो बेसिकली अभी तक किसी भी एक कैटेगरी के अंदर जो सब कैटेगराइजेशन था उसे अलाउ नहीं किया गया था, बट 2024 ऑनवर्ड्स इस पर्टिकुलर चीज को अलाउ कर दिया गया है और जो रिस्पेक्टिव स्टेट्स हैं वो अब सब क्लासिफिकेशन कर सकती हैं. 2004 का जो जजमेंट था उसमें सुप्रीम कोर्ट ने बोला था दैट द शेड्यूल्ड कास्ट आर अ होमोजेनियस ग्रुप. ये होमोजेनियस ग्रुप होता है, इसीलिए हम फर्दर सब क्लासिफाई नहीं कर सकते. बट सुप्रीम कोर्ट ने 2024 में क्या बोला कि ये एक कॉमन ग्रुप हो ही नहीं सकता है, एक ये होमोजेनियस ग्रुप हो ही नहीं सकता है, क्योंकि जितने भी लोग शेड्यूल्ड कास्ट में सबका बैकग्राउंड, सबका सोशल स्ट्रक्चर बहुत ही डिफरेंट है. तो दिस इज नॉट अ होमोजेनियस ग्रुप, इससे इसमें सब क्लासिफिकेशन हम अलाउ करते हैं. ठीक है, अब देखिए एक चीज आप लोग और याद रखिएगा व्हिच इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट फॉर यू टू अंडरस्टैंड. दिस होल facade of sub classification began in 1975. Now what happened in 1975? That in 1975 Punjab became the first state in India to do the sub classification. अब 1975 में पंजाब ने क्या किया था कि पंजाब में जो एग्जिस्टिंग रिजर्वेशन था एससीज के लिए 25%, इसे दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया था. पहला पार्ट बेसिकली ज्यादा है किसके पास में? मजहबी 6 और वाल्मीकि के लिए, और दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करने के बाद जो बचा हुआ मतलब जो रिमेनिंग 50% है वो किसके पास जाएगा? रेस्ट ऑफ द एससी कम्युनिटी. So Punjab in 1975 became the first state in India to do the sub classification. Two specific communities that are Majhabi Sikhs and Valmikis were sub classified by the Punjab government, and the reservation was basically divided. The existing reservation was divided 50-50. मतलब 50% सीट्स रिजर्व रहेंगे इन दो कम्युनिटीज के लिए और 50% सीट्स जाएंगी बची हुई ऐसी कम्युनिटीज के लिए, 50% ऑफ दिस स्पेसिफिक नंबर. फिर पंजाब गवर्नमेंट की जो ये पॉलिसी थी इसे 2006 में पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने स्टॉप डाउन कर दिया था. फिर इसे गवर्नमेंट ने चैलेंज किया और फिर उसके बाद 2024 में ये जजमेंट आया. ठीक है, तो अब आपको ये टॉपिक बहुत एग्जॉस्टिवली कवर करना है. 2024 में सुप्रीम कोर्ट के जितने भी जजमेंट आए जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, ये जजमेंट उसमें से प्रायोरिटी में नंबर 1 पे, आपको इस जजमेंट को प्रायोरिटी में नंबर 1 पे रखना है. जितनी भी इंफॉर्मेशन मैंने अभी आपको बताई, अगर ये पर्टिकुलर क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा तो 3 अगर आपसे 5 क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे तो आपको 2 से 3 क्वेश्चंस के आंसर सिर्फ उस इंफॉर्मेशन से मिल जाएंगे जो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया. अगर आप इस टॉपिक में पर्टिकुलरली 100% अपना देना चाहते हैं
तो आपको इस टॉपिक को एक बार प्रवाहिनी से पढ़ लेना है, सेकंड टॉपिक है, और इसको जब आप कंप्लीट कर लेंगे तब आप अपने आप को श्योर कर सकते हैं कि हाँ अगर ये पर्टिकुलर टॉपिक एग्जाम में पूछा गया तो आप इसमें काफी अच्छा परफॉर्म करेंगे। ठीक है, अब हम इससे के साथ चलते हैं अपना जो टॉपिक नंबर 3 का हम मूव करेंगे। And what is topic number 3? Topic number 3 is India at 33rd Olympics. So India at 33rd Olympics, तो 33rd Olympics के बारे में थोड़ा सा हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। 33rd Olympics, because 33rd Olympics are very very important for us. Why? Because at the 33rd Olympics का सबसे पहले हम वेन्यू देख लेते हैं। वेन्यू क्या था? पेरिस। 33rd एडिशन था, ये भी याद रखिएगा। इंडिया से टोटल 117 एथलीट्स ने पार्टिसिपेट किया था 16 डिफरेंट इवेंट्स में। ये भी आप याद रखेंगे, 117 एथलीट्स से 16 डिफरेंट इवेंट्स में हमने पार्टिसिपेट किया। और मैस्कट क्या था? फ्रीजिया। फ्रीजिया बेसिकली क्या था? मैस्कट था। फ्रीजिया एक फ्रेंच स्टाफ होता है जो मैस्कट था। अब इंडियन पॉइंट ऑफ व्यू से आपको क्या क्या चीजें याद रखनी? इंडियन कंटिजेंट में टोटल 117 एथलीट्स से 16 इवेंट्स में हमने पार्टिसिपेट किया। और फिर क्या क्या चीजें हमारे लिए इंपॉर्टेंट है? फ्लैग बियरर कौन था ओपनिंग सेरेमनी में? So flag bearer at opening ceremony was Mr. शरद कमल अचंता। शरद कमल अचंता का नाम आप लोग याद रखेंगे। शरद कमल अचंता का स्पोर्ट्स कौन था जिससे रिलेटेड थे? तो शरद कमल अचंता रिलेटेड है टीटी से, टेबल टेनिस से। और दूसरा फ्लैग बेयरर कौन था? ओपनिंग सेरेमनी की बात हो रही है यहाँ पे। ओपनिंग सेरेमनी है जो बेसिकली दूसरे एथलीट थे उनका नाम था या उनका नाम है पीवी सिंधु। तो पीवी सिंधु के बारे में तो आप सब लोग भी जानते हैं, पीवी सिंधु इज रिलेटेड टू बैडमिंटन। अब जब हमने ये सारी चीजें देखी, अब हम एक इन्फॉर्मेशन और हमारे लिए रेलेवेंट है जो आप याद रखेंगे। क्लोजिंग सेरेमनी में फ्लैग बेयरर कौन था? सो क्लोजिंग सेरेमनी में फ्लैग बेयरर थे मनु भाकर, जिन्होंने दो ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं 33rd ओलंपिक्स में। मनु भाकर और हमारे इंडियन हॉकी टीम के जो गोलकीपर है जिन्होंने एक्सट्रीमली टैलेंटेड प्लेयर, इज एक्सट्रीमली टैलेंटेड एंड अ वेल डिजर्विंग प्लेयर इंडियन हॉकी टीम में, इंडियन हॉकी के लिए मिस्टर पी श्रीजेश का जो कंट्रीब्यूशन है वो बहुत ज्यादा है। और पी श्रीजेश हॉकी से रिलेटेड है। और पी श्रीजेश और मनु भाकर क्लोजिंग सेरेमनी में फ्लैग बेयरर थे। टॉर्च बेयरर अगर आपसे पूछ लिया जाए कि टॉर्च बेयरर कौन था, तो टॉर्च बेयरर थे मिस्टर अभिनव बिंद्रा। अभिनव बिंद्रा टॉर्च बेयरर थे। और अभिनव बिंद्रा के बारे में आपको एक चीज और याद रखनी कि इन 2008 अभिनव बिंद्रा बिकेम द फर्स्ट इंडियन टू विन एन ओलंपिक गोल्ड इन इंडिविजुअल कैटेगरी। शूटिंग स्पोर्ट्स से रिलेटेड है अभिनव बिंद्रा। ठीक है, अब देखिए ये सारी चीजें हमने डिस्कस कर ली। अब अभिनव बिंद्रा से रिलेटेड आपको एक चीज और याद रखनी है कि अभिनव बिंद्रा को ओलंपिक्स ने इस बार इंटरनेशनल ओलंपिक्स कमेटी ने, आईओसी इंटरनेशनल ओलंपिक्स कमेटी ने कौन सा अवार्ड दिया? ऑर्डर ऑफ द ओलंपिक्स। ऑर्डर ऑफ द ओलंपिक्स अवार्ड दिया गया है किसको? अभिनव बिंद्रा को। ठीक है, अब इसके अलावा आपको एक चीज और याद रखनी है ओलंपिक्स के बारे में कि इंडियन ओलंपिक्स इंटरनेशनल ओलंपिक्स कमेटी में इंडिया को कौन रिप्रेजेंट करता है? मिसेस नीता अंबानी। नीता अंबानी मेंबर है इंटरनेशनल ओलंपिक्स कमेटी में इंडिया की। और इसके अलावा आपको एक चीज और याद रखनी है, जो सबसे पहला मॉडर्न ओलंपिक्स हुआ था वो 1896 में एथेंस ग्रीस में हुआ था। इंडिया को आज तक टोटल जो ओलंपिक्स में मेडल मिले वो 41 मेडल्स हमें मिले। 41 मेडल्स में से हमें 10 गोल्ड मिले और 31 अदर मेडल्स। और इन 10 में से भी हमें 8 गोल्ड मेडल मिले हैं अभी तक ओलंपिक्स में हॉकी में। फिर एक गोल्ड 2008 में मिस्टर अभिनव बिंद्रा को मिला था शूटिंग में। और जो लास्ट गोल्ड मेडल है वो किसको मिला था? नीरज चोपड़ा को 2020 ओलंपिक्स में। ठीक है, अब इसके अलावा आपको और क्या क्या चीजें याद रखनी है कि 2024 एडिशन जो था ओलंपिक्स का, इसमें इंडिया को टोटल 6 मेडल्स मिले। सबसे पहला मेडल मिला था मनु भाकर को 10 मीटर एयर पिस्टल में। फिर दूसरा मेडल मिला था मनु भाकर एंड सरबजीत सिंह को 10 मीटर मिक्स्ड टीम इवेंट में एयर पिस्टल। देन थर्ड मेडल मिला था स्वप्निल कुसाले को। स्वप्निल कुसाले को मेंस 50 मीटर 3 पोजीशंस में मिला था। मेंस 50 मीटर राइफल्स 3 पोजीशन में मिला था। फिर जो फोर्थ मेडल इंडिया को मिला था वो हॉकी में मिला था, ये भी ब्रॉन्ज था। और ब्रॉन्ज मेडल इंडिया को हॉकी में मिला था, स्पेन को हमने हराया था 2-1 से, तो आप ये भी याद रखेंगे। फिफ्थ मेडल मिला था नीरज चोपड़ा को। नीरज चोपड़ा को मिला था सिल्वर मेडल। और इन्होंने बेसिकली इन्हें जैवलिन में मिला था, उन्होंने 89.45 मीटर दूर भाला फेंका था। और इसी इवेंट में पाकिस्तान के अरशद नदीम को गोल्ड मेडल मिला था और इन्होंने अरशद नदीम ने 92.97 मीटर दूर भाला फेंका था। और जो लास्ट मेडल है वो हमें रेसलिंग में मिला था। रेसलिंग में हमें कौन सा मेडल मिला था? ब्रॉन्ज। और किसको मिला था? अमन शेरावत को।
तो आपको ये याद रखना है कि इंडिया को टोटल 6 मेडल मिले थे। 6 टोटल मेडल्स हमारे पास कितने थे? 6 मेडल्स थे हमारे पास टोटल। ठीक है, 6 मेडल्स थे हमारे पास टोटल। और नंबर 1 पे कौन से, इंडिया की रैंकिंग कितनी थी? 71 थी। फर्स्ट रैंक किस कंट्री का था? फर्स्ट रैंक था यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का, और सेकंड रैंक था चाइना का। ठीक है, सो अब इसी के साथ आप ये मान के चल सकते हैं कि ये जो टॉपिक हमारा यहीं पे कंप्लीट होता है। अब नेक्स्ट टॉपिक पे मूव कर रहे हैं। बांग्लादेश क्राइसिस के बारे में हम बहुत बहुत इन डेप्थ में कवर नहीं करेंगे। द रीजन इज कि अगर आप लोग बांग्लादेश क्राइसिस को एग्जॉस्टिवली कवर करना चाहते हैं, सो हम लोगों ने 16 ऑफ सितंबर 2024 को सक्सेस मंत्रा डिजिटल प्लेटफॉर्म पे एक डेडिकेटेड वीडियो रिलीज किया है विद द टाइटल ऑफ बांग्लादेश पॉलिटिकल टर्मोइल। आप ये चीज वहां से कवर कर सकते हैं, बट फिर भी कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है जो आपको याद रखनी है। सबसे पहले तो आपको याद रखना है कि ईस्ट पाकिस्तान इज टुडेज बांग्लादेश। ईस्ट पाकिस्तान इज टुडेज बांग्लादेश। फिर एक इंफॉर्मेशन आपको और याद रखनी है कि 16 दिसंबर 1971 को 16 दिसंबर 1971 को बांग्लादेश गॉट इंडिपेंडेंस। 15 दिसंबर को इंडिपेंडेंस मिला था बांग्लादेश को। और एक चीज आपको याद रखनी है, शेख मुजीबुर रहमान। शेख मुजीबुर रहमान जो बेसिकली अवामी लीग के वन ऑफ द फाउंडर्स थे, ये बांग्लादेश के इंडिपेंडेंट बांग्लादेश के फर्स्ट पीएम थे, एंड ही इज आल्सो नोन एज फाउंडिंग फादर ऑफ बांग्लादेश। ये फाउंडिंग फादर थे बांग्लादेश के, आपको ये चीज भी याद रखनी है। फिर शेख हसीना के बारे में आप लोग एक चीज याद रखेंगे कि शेख हसीना इज द लॉन्गेस्ट सर्विंग वुमेन प्राइम मिनिस्टर। शेख हसीना इज द लॉन्गेस्ट सर्विंग प्राइम मिनिस्टर इन द वर्ल्ड। Sheikh Hasina is known as the Iron Lady of Bangladesh and she is daughter of Sheikh Mujibur Rahman। 1996 में पहली बार प्राइम मिनिस्टर बनी थी। शेख बांग्लादेश 16 दिसंबर 1971 को इंडिपेंडेंट हुआ था, और इस दिन को सेलिब्रेट किया जाता है एज अ विजय दिवस। बांग्लादेश एंड इंडिया इंडिया भी ऑब्जर्व करता है एज अ विजय दिवस। फिर आपको याद रखना है कि इस समय जो इंटरिम प्राइम मिनिस्टर है बांग्लादेश के, वो कौन है? मिस्टर मोहम्मद यूनुस, जिन्हें 2006 में नोबेल पीस प्राइज मिला था फॉर डेवलपिंग इनोवेटिव माइक्रो फाइनेंस मॉडल। और वो इनोवेटिव माइक्रो फाइनेंस मॉडल क्या था? वो इनोवेटिव माइक्रो फाइनेंस मॉडल था ग्रामीण बैंक। फिर आप ये भी याद रखिए कि बांग्लादेश, इंडिया बांग्लादेश के साथ सबसे ज्यादा अपना लैंड बॉर्डर शेयर करता है 4096.7 किलोमीटर, और इसमें से भी सबसे ज्यादा बॉर्डर शेयर करता है वेस्ट बंगाल 2217 किलोमीटर का। ठीक है, अब आपको और क्या इन्फॉर्मेशन अपने दिमाग में रिटेन करनी है टू इस दिस पर्टिकुलर टॉपिक? आपको ये इन्फॉर्मेशन भी रिटेन करनी है कि बांग्लादेश की जो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर थी शेख हसीना, शी केम टू इंडिया ऑन 5 अगस्त 2024। और जब से ये इंडिया आई है तब से कॉन्टिन्यूसली एक्सट्रेडिशन की डिमांड कर रहा है बांग्लादेश। इंडिया ने एज ऑफ नाउ 48 कंट्रीज के साथ एक्सट्रेडिशन ट्रीटी साइन की है। और इंडिया में एक्सट्रेडिशन को रेगुलेट क्या करता है? इंडिया में एक्सट्रेडिशन को रेगुलेट करता है इंडियन एक्सट्रेडिशन एक्ट 1962। इंडियन एक्सट्रेडिशन एक्ट 1962 रेगुलेट करता है। फिर इसके बाद आप तो याद रखेंगे कि करंट प्रॉब्लम क्या था कि जो रिजर्वेशन एग्जिस्ट कर रहा था, जिसे वहां के हाईकोर्ट ने रीइंस्टेट कर दिया था 30% रिजर्वेशन फॉर द sons and grandsons of 1971 वॉर वेटरन्स के जो बेटे और ग्रैंड सन्स एंड ग्रैंडसन्स थे या चाइल्ड और ग्रैंड चाइल्ड थे, उनके लिए ये बेसिकली अवेलेबल था रिजर्वेशन। अब इस रिजर्वेशन को पॉज कर दिया था बांग्लादेश गवर्नमेंट ने 2018 में, फिर हाईकोर्ट में इसे चैलेंज किया गया, हाईकोर्ट ने रीइंस्टेट किया। रीइंस्टेट के बाद बहुत वाइड प्रोटेस्ट हुआ बांग्लादेश में, और उसके बाद फिर वहां के जो चीफ जस्टिस थे वहां सुप्रीम कोर्ट के, उन्हें रिजाइन करना पड़ा, फिर प्राइम मिनिस्टर को भी रिजाइन करना पड़ा, एंड लास्टली सारी चीजें स्टूडेंट्स के हिसाब से होगी। तो ये पर्टिकुलर टॉपिक भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, और इस पर्टिकुलर टॉपिक को हम इसी जगह पे वाइंड अप करेंगे। अगर आप इस टॉपिक में और भी फर्दर इन्फॉर्मेशन चाहते हैं तो आप इस टॉपिक को एग्जॉस्टिवली कवर कर सकते हैं उस पर्टिकुलर वीडियो से भी, दैट इज अ 28 मिनट वीडियो। आप डायरेक्ट में जाकर के हर एक आस्पेक्ट को वहां से कवर कर सकते हैं। ठीक है,
अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे मूव करते हैं, एंड द नेक्स्ट टॉपिक वी हैव विद अस। अब जो वेनेजुला के इलेक्शंस हैं उनके बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। सो वेनेजुला में जो रिसेंट इलेक्शन हुए थे, जिन्हें जीता था निकोलस मडुरो के इस इलेक्शन, ये बेसिकली थर्ड टाइम इलेक्ट होकर के प्रेसिडेंट बने वेनेजुला के, और बहुत ज्यादा एलिगेशंस लगे इन पे कि इन्होंने इलेक्शंस को रीड किया है और अनफेयर मींस का यूज किया इन्होंने इलेक्शन जीतने के लिए, ठीक है। फिर जब इनके इलेक्शन को चैलेंज किया जाता है, सो फिर सुप्रीम ट्रिब्यूनल ऑफ जस्टिस जो वेनेजुला का है, अब ये जो सुप्रीम कोर्ट है बेसिकली ये बहुत इसकी लॉयल्टी अलग से है मडुरो के लिए, जो निकोलस माडुरो इलेक्ट में, तो उन्होंने भी वहां के सुप्रीम कोर्ट ने भी इन इलेक्शन को कम्प्लीटली वैलिड बताया। फिर जो अपोजिशन के कैंडिडेट थे गोंजालेज, जो एडमुंडो गोंजालेज रूडिया, रूडिया को फिर जो मेन ऑपोजिशन के कैंडिडेट थे, इन्हें स्पेन भागना पड़ा क्योंकि इनके अगेंस्ट एक अरेस्ट वारंट भी इशू कर दिया गया था, इसलिए इन्हें पॉलिटिकल असाइलम लेना पड़ा स्पेन में। तो आप इस पर्टिकुलर टॉपिक को भी पूरा डिटेल में कवर कर लीजिए, करेंसी देख लीजिएगा, कैपिटल देख लीजिएगा, एलिजिबिलिटी आपके, फिर ये इंडिया में प्रेसिडेंट के क्या इलेक्ट होने के क्या क्या क्राइटेरियाज होते हैं, कैसे प्रेसिडेंट का इलेक्शन होता है, कौन कौन से आर्टिकल्स जो इंपॉर्टेंट है प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के लिए, आप ये चीज को भी कवर कर सकते हैं। दिस विल फॉल अंडर द पॉलिटी एस्पेक्ट। अब देखिए, अब फिर इसके बाद जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का विजिट हुआ था पोलैंड और यूक्रेन, दिस इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। दिस पर्टिकुलर विजिट ऑफ प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। और एक चीज आप लोग याद रखिएगा कि पोलैंड ना, दिस काइंड ऑफ क्वेश्चंस विल मेक एनी एग्जामिनेशन टफ। ऐसे ही क्वेश्चन जो होते हैं वो एग्जाम को टफ बनाते हैं। अब पोलैंड से यूक्रेन प्राइम मिनिस्टर कैसे गए? ट्रेन से। ट्रेन का नाम क्या था? Now this is one important question. ट्रेन का नाम क्या था? रेल फोर्स वन। और 45 इयर्स के बाद किसी भी इंडियन प्राइम मिनिस्टर का विजिट था पोलैंड। इससे पहले 1979 में जनता दल की गवर्नमेंट थी और जनता दल के लीडर थे, जैसे जो प्राइम मिनिस्टर थे उस समय मोरारजी देसाई, ये लास्ट लीडर थे जिन्होंने पोलैंड विजिट किया था 1979 में। और इसके बाद 2024 में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने विजिट किया, ठीक है। अब देखिए, इंडिया और यूक्रेन के जो डिप्लोमेटिक रिलेशंस थे वो कब स्टैब्लिश हुए? इंडिया और यूक्रेन के जो डिप्लोमेटिक रिलेशंस थे वो स्टैब्लिश हुए थे 1992 में, ठीक है। और तब से जब से हमारे डिप्लोमेटिक रिलेशन स्टैब्लिश हुए यूक्रेन के साथ, तब से ये पहला विजिट है किसी भी इंडियन प्राइम मिनिस्टर का। और दूसरी चीज ये और इम्पोर्टेंट ये विजिट क्यों हो जाता है, क्योंकि इंडिया के जो रिलेशंस हैं रशिया के साथ वो बहुत अच्छे हैं, दे आर एक्सट्रीमली गुड। और अभी जो वॉर चल रहा है दैट इज बिटवीन यूक्रेन एंड रशिया। इस पर्टिकुलर रीजन की वजह से ये जो विजिट था दैट इट बिकम्स एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। और जुलाई के महीने में देयर वाज अ विजिट ऑफ प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी टू रशिया। रशिया के बाद यूक्रेन के इस विजिट के बाद बहुत सारे क्वेश्चंस रेज किए लोगों ने कि इससे हमारे और रशिया के रिलेशंस पे क्या फर्क पड़ेगा। बट अगेन प्राइम मिनिस्टर इज वेरी स्मार्ट पर्सन। इन्होंने क्या किया कि इन्होंने मिस्टर अजीत डोभाल जो इंडिया के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं, इन्होंने इंडिया के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर मिस्टर अजीत डोभाल को रशिया भेजा। और हमारे जो एनएसए हैं उन्होंने रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन को एक ब्रीफ दिया। और वो ब्रीफ किस चीज से रिलेटेड था? जो इंडियन प्राइम मिनिस्टर का विजिट हुआ था यूक्रेन। सो यू हैव टू रिमेंबर ऑल दीज फैक्ट्स। आप इन्हें भूल नहीं सकते। फिर यूक्रेन की कैपिटल काइव देख लीजिएगा, करेंसी वगैरह एक बार देख लीजिएगा, और इंडिया और यूक्रेन के बायलैटरल ट्रेड के बारे में देख लीजिएगा इफ देयर इज एनी, तो आप वो चीजें देख सकते हैं। ना नेक्स्ट टॉपिक पे मूव कर रहे हैं, टॉपिक नंबर 5। देखिए, हम सिर्फ उन्हीं टॉपिक्स को ज्यादा टाइम देंगे जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा इंपॉर्टेंट है। बाकी यू हैव टू गिव इट अ प्रॉपर रीड टू गेट द प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग टू एस योर एग्जामिनेशन। टॉपिक नंबर 7 पे हम एंटर करते हैं कमला हैरिस।
सो कमला हैरिस हैं प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट डेमोक्रेट्स की, और डोनाल्ड ट्रंप हैं रिपब्लिकन्स के कैंडिडेट, वाइस प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट्स। ठीक है, अब डोनाल्ड ट्रंप के बारे में आपको एक चीज और याद रखनी है कि डोनाल्ड ट्रंप बेसिकली इन पे 2 बार असैसिनेशन अटेम्प्ट हो चुका है। करंटली इन पे 2 बार असैसिनेशन अटेम्प्ट हुआ है। एक बार हुआ था पेंसिल्वेनिया में और दूसरा हुआ है फ्लोरिडा में। ठीक है, अब डोनाल्ड ट्रंप के रनिंग मेट कौन है, मतलब वाइस प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट कौन है, जेडी वांस। आप इनका भी नाम याद रखेंगे। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं इस टॉपिक में। यूएस इलेक्शन इटसेल्फ आर वेरी इंपॉर्टेंट। और मिस्टर टिम वार्ड्स जो मिनेसोटा के गवर्नर है, टिम वार्ड इज द रनिंग मेट और वाइस प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट ऑफ डेमोक्रेट्स। आप इनका भी नाम याद रखेंगे, टिम वार्ड्स। और एक और इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको प्लीज याद रखनी है कि प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट के नाम तो सबको पता रहता है, मतलब दिस इज नथिंग न्यू। आपको वाइस प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट के नाम भी पता रखने हैं। और वाइस प्रेसिडेंट्स को हम लोग बेसिकली यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में रनिंग मेट बोला जाता है, आप ये भी याद रखेंगे, रनिंग मेट। एंड लास्टली जो इन्फॉर्मेशन आपको याद रखनी है विच इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, दैट यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में टोटल कितने स्टेट्स हैं। तो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में टोटल 50 स्टेट्स हैं। यूएसए की कैपिटल क्या है, वॉशिंगटन डीसी। डीसी स्टैंड्स फॉर डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया। ठीक है, ये सारे इंफॉर्मेशन है जो आपको याद रखनी है। इसके बाद इलेक्शंस नवंबर के महीने में होने, तो तब ये टॉपिक आप एग्जॉस्टिवली कवर कर सकते हैं। और आपका एग्जाम भी फ्लैट एस्पिरेंट्स और एलिट एस्पिरेंट्स जो उनका एग्जाम भी दिसंबर में, तो आप इस चीज को तब प्लीज थोड़ा ध्यान से देखिएगा। बैकग्राउंड देख लीजिएगा, जो असैसिनेशन अटेम्प्ट हुआ उसके बारे में देख लीजिएगा। पहला यूएस प्रेसिडेंट कौन था जिस पर असैसिनेशन अटेम्प्ट हुआ था, पहला यूएस प्रेसिडेंट कौन जिसको असैसिनेशन किया गया था, ये सारी चीजें। अब हम लोग थोड़ा सा ना यूपी के एंटी कन्वर्जन बिल के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं, बिकॉज देयर वाज अ लॉट ऑफ एंटिसिपेशन इस पर्टिकुलर टॉपिक से क्वेश्चन दे माइट आस्क। और दूसरा एक चीज ये भी है कि स्टूडेंट्स वर रिक्वेस्टिंग, बेसिकली दे वर नॉट रिक्वेस्टिंग, एक्चुअली दे वर सजेस्टिंग दैट सर हम लोगों को इस पर्टिकुलर टॉपिक को भी कवर कर लेना चाहिए। सो इस पर्टिकुलर रीजन की वजह से हम स्टूडेंट्स की डिमांड पे बेसिकली ये टॉपिक हम लोग बहुत एग्जॉस्टिवली कवर करने वाले हैं। तो रिसेंट न्यूज, so the Uttar Pradesh State Legislative Assembly has passed the UP Prohibition of Unlawful Conversion of Religion Amendment Bill 2024. So the State Assembly of Uttar Pradesh has passed this particular Unlawful Conversion Bill. Punishments को बहुत ग्रेव कर दिया गया, punishments को बहुत ग्रेव कर दिया गया। 2021 में जो एक्ट आया था उस एक्ट को 2024 में अमेंड किया गया और मास कन्वर्जन और अलग अलग चीजों को लेकर के जो पनिशमेंट है वो थोड़ा सा बढ़ा दिया गया। इसीलिए हम जो ये की अमेंडमेंट या की चेंजेस वाला जो पॉइंट है इसे हम थोड़ा सा एग्जॉस्टिवली कवर करेंगे। जो ये की अमेंडमेंट वाला या की चेंजेस वाला जो पॉइंट है, रिमूवल ऑफ रिस्ट्रिक्शंस ऑन हु कैन फाइल एन एफआईआर। तो अभी तक क्या था, टिल बिफोर दिस पर्टिकुलर अमेंडमेंट जो सिर्फ स्टेक होल्डर्स होते थे या जो अफेक्टेड पार्टी होती थी सिर्फ वही एफआईआर फाइल कर सकती थी। बट दिस पर्टिकुलर प्रोविजन हैव बीन चेंज्ड, इसे हटा दिया गया है। अब कोई भी कन्वर्जन से रिलेटेड एफआईआर अब कोई भी फाइल कर सकता है, सिर्फ स्टेक होल्डर्स नहीं। स्टेक होल्डर्स तो कर ही सकते हैं, मतलब जिसको लग रहा है कि उसका कन्वर्जन फोर्सफुली किया गया वो तो एफआईआर फाइल कर ही सकता है। बट अलॉन्ग विद दैट पर्सन अदर पीपल इन सोसाइटी जिन्होंने कहीं पे विटनेस किया कि यहाँ पे अनलॉफुल कन्वर्जन हो रहा है, सो वो लोग भी एफआईआर फाइल कर सकते हैं। एफआईआर मींस फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, आप प्लीज फुल फॉर्म याद रखिएगा। अब दूसरा इंपॉर्टेंट प्रोविजन क्या है, स्ट्रिंजेंट बेल कंडीशंस। बेल कंडीशंस बहुत ज्यादा अक्यूज्ड, तो बेसिकली जो बेल कंडीशंस है उन्हें बहुत ज्यादा अक्यूज्ड बहुत ज्यादा टफ कर दिया गया। और अगर अब कोई भी फॉरेन और इलीगल फंड्स का यूटिलाइजेशन करता है तो एंटी कन्वर्जन के लिए, तो उसको 7 to 14 ईयर्स का इम्प्रिजनमेंट हो सकता है। और अगर किसी को कोई थ्रेट, फोर्स माइनर्स को इंड्यूस करके वुमेन को ट्रैफिकिंग करके अगर कोई कन्वर्जन करता है तो उसे मिनिमम 20 ईयर्स का इम्प्रिजनमेंट होगा। तो these are few important amendments जो आपको याद रखने हैं। Then we have implications and future outlook. So आप ये कि अपने आप से पहले देख सकते हैं कि इसका फ्यूचर आउटलुक और इसके implications क्या होंगे।
Now, overview of anti-conversion law definition, provision, then penalties, both criminal and civil penalties are more depending on the jurisdiction. Then concerns क्या क्या हैं, क्रिटिसाइज क्यों कितना ज्यादा किया जा रहा है, और अभी ऐसे एंटी कन्वर्जन लॉ की हमें जरूरत क्या थी, कल्चरल सोशल प्रोविजन, preservation of traditions and beliefs, prevention of coercion and deception. So ये सारी चीजें हैं. Again, this love jihad controversy is really important because somehow in Uttar Pradesh, in the state of Uttar Pradesh, this love jihad controversy is directly linked with anti-conversion law. Because there's the allegation that these laws target interfaith marriages, violating rights like the right to life, personal liberty. And so एक criticism ये भी किया जा रहा था कि जो ये anti-conversion bill आया, it will affect the fundamental or personal liberty of individuals. But again, हम स्टेट के लॉज को सिर्फ क्रिटिसाइज कर सकते हैं. एट द एंड ऑफ द डे इट इज द प्रेरोगेटिव ऑफ स्टेट गवर्नमेंट एंड यूनियन गवर्नमेंट टू फ्रेम दीज लॉज, और वंस दीज लॉज आर इनटू प्ले फिर हम कुछ नहीं कर सकते. फिर हमें उन लॉज को प्रॉपर्ली अबाइड करना होगा, अदरवाइज वी ऑल नो द कॉन्सिक्वेंसेस. किसी भी लॉ को ना मानने के बहुत सारे कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं जो आपको फेस करने पड़ेंगे. ठीक है. Now we will be discussing about Voice of Global South Summit, VOGS. So VOGS, India ने host किया था. Third Voice of Global South Summit was hosted by India on 3rd of August, on 17th of August 2024. Third edition था 17th August को ये summit हुई है. और इसका theme क्या था? Theme is very important, and empowered global south for a sustainable development, and empowered global south for a sustainable future. So आपको थीम याद रखना है. थीम मैं मार्क कर दे रहा हूँ, अंडरलाइन कर दे रहा हूँ. दिस इज इम्पोर्टेंट. कितने कंट्रीज ने पार्टिसिपेट किया? 123 कंट्रीज ने पार्टिसिपेट किया. और किन कंट्रीज को इनवाइट नहीं किया गया? दिस इज आल्सो एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट. चाइना और पाकिस्तान को इनवाइट नहीं किया इंडिया ने इस पर्टिकुलर समिट में पार्टिसिपेट करने के लिए. ठीक है. तो दिस इज आल्सो इम्पोर्टेंट. पहली समिट जनवरी 2023 में हुई थी. सेकंड वर्क समिट हुई थी नवंबर 2023. वर्चुअल फॉर्मेट में थी दोनों. 2024 में थर्ड एडिशन हुआ है समिट का, जो आप याद रखेंगे. अब देखिए, जो ग्लोबल साउथ टर्म है, इसे किसने कॉइन किया था? ग्लोबल साउथ टर्म वाज कॉइन्ड बाय कार्ल ऑगलेसी इन 1969. आप ये भी याद रखेंगे. ठीक है. अब जैसे ब्रिक टर्म किसने कॉइन किया? जो ब्रिक टर्म है, सो ब्रिक टर्म वाज कॉइन्ड बाय ब्रिटिश इकोनॉमिस्ट जिम ओनील ने कॉइन किया था. तो आपको ये भी याद रखना है. इवेंट के बारे में स्पेसिफिकेशंस हैं, क्या क्या की एरियाज थे फोकस के, उन्हें आप याद रख सकते हैं. अभी सेशंस के बारे में आप लोग देख लेंगे. हेल्थ मिनिस्टर सेशन या एजुकेशन मिनिस्टर सेशन, यूथ मिनिस्टर सेशन, ट्रेड मिनिस्टर सेशन, आईटी मिनिस्टर सेशन, एनवायरमेंट मिनिस्टर सेशन. ठीक है. तो ये सारी चीजें भी इंपॉर्टेंट है. Now this is extremely important, polygraph test. Okay, recently Central Bureau of Investigation was authorized to conduct perform this polygraph test on the key suspects of the unfortunate event which took place at RG Kar Medical Hospital on 9th of August 2024. तो प्राइमरी एक्यूज जो थे संजय रॉय और संदीप घोष, उन दोनों लोगों पे ये पॉलीग्राफ टेस्ट कंडक्ट किया गया. अब पॉलीग्राफ टेस्ट जो में बेसिकली क्या होता है, इट इज अ काइंड ऑफ अ लाइन डिटेक्टर टेस्ट, जिसमें हम बहुत सारे साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स का और इक्विपमेंट्स का यूज करके पॉलीग्राफ टेस्ट कंडक्ट करते हैं. दो टेस्ट होते हैं जो बेसिकली सच निकालने के लिए, सच बुलवाने के लिए अथॉरिटीज कंडक्ट करती हैं. पहला है पॉलीग्राफ टेस्ट और दूसरा है आपका नार्को टेस्ट. अब नार्को टेस्ट में आपको चीज और याद रखनी है कि नार्को टेस्ट में सोडियम पेंटाथॉल का यूज किया जाता है. एक इस एलिमेंट को आपके बॉडी में इन्फ्यूज किया जाता है सो दैट वी स्पीक लॉट ऑफ ट्रूथ, नथिंग बट द ट्रूथ. तो वो जो आप कहते नहीं है, ये मैं गीता पे हाथ रख के कसम खाता हूँ कि मैं सच बोलूंगा, सच के सिवा कुछ नहीं बोलूंगा. तो दिस नार्को टेस्ट एंड पॉलीग्राफ टेस्ट मेक श्योर कि आप सच बोले, सच के सिवा कुछ ना बोले. नार्को टेस्ट में आपको बस इतना याद रखना है कि नार्को टेस्ट में हम एक ड्रग जो होता है, नार्कोटिक्स जो होता है, बेसिकली ड्रग होता है वो आपकी बॉडी में इन्फ्यूज करते हैं. एंड द नेम ऑफ दैट ड्रग इज सोडियम पेंटाथॉल. ठीक है. बेसिकली सोडियम पेंटाथॉल के लिए एक कॉमन सा टर्म और यूज किया जाता है, ट्रूथ सीरम. तो सोडियम पेंटाथॉल को ट्रूथ सीरम भी हम बोलते हैं. सो आपको ये भी याद रखना है. ठीक है.
अब हम कुछ और इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं जिन्हें डील कर लेते हैं. इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट्स, जस्ट गिव मी अ मिनट, आई गेस देयर इज अ प्रॉब्लम. लेट्स अंडरस्टैंड, डील विद दिस प्रॉब्लम फर्स्ट. Yeah, so now we are fine. We can start. अब लीगैलिटी एंड एडमिसिबिलिटी ऑफ पॉलीग्राफ टेस्ट. अब देखिए, एडमिसिबिलिटी और लीगैलिटी में ना एक केस बहुत इंपॉर्टेंट है, और इस केस का नाम क्या है? केस का नाम आप सबको याद रखना है, डीके बासु वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल. नाउ व्हाई दिस पर्टिकुलर केस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, डीके बासु वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल? Because in this particular case, the Honorable Supreme Court of India has stated that involuntary administration of polygraph and narco test. Involuntary administration of polygraph and narco test will amount to cruel, inhumane and degrading treatment under Article 21. Under Article 21, it will amount to degrading, inhumane and cruel treatment. और Article 20 clause 3 के अंदर basically क्यों, why this polygraph and narco test is violative of Article 20 clause 3? Because you Article 20 clause 3 ये बोलता है that you cannot force someone to give a self-incriminating statement. कि आप किसी को ये force नहीं कर सकते हैं कि वो एक self-incriminating statement दे. और narco test और polygraph test में क्या होता है बेसिकली, आप उस सीरम को बॉडी में इंजेक्ट इसलिए करते हैं that the person speaks the truth, nothing but the truth. तो ट्रूथ के लिए आप वो पर्टिकुलर ड्रग बॉडी में इन्फ्यूज करते हैं, तो जिससे कई बार होता है कि आदमी या एक्यूज जो होता है वो सेल्फ इंक्रिमिनेटिंग स्टेटमेंट भी दे सकता है. तो दैट्स व्हाई दिस पर्टिकुलर प्रिंसिपल बिकम्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. डीके बासु वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल यहाँ पर दिया गया, आपके साथ डिस्कस किया गया. आप स्टेट ऑफ बंगाल वर्सेस क्लाथी का जजमेंट भी एक बार देख सकते हैं. आई वोंट सजेस्ट कि आप बहुत डिटेल रीडिंग करिए, बस केसेस के नाम याद रखिए, ठीक है. With this we have completed topic number 8. अब हम मूव करें टॉपिक नंबर 10. Just give me a minute. We have to make sure कि हम सारे टॉपिक्स exhaustively कवर कर लें. ये पॉलीग्राफ टेस्ट हो गई. Then we have this summit. So yes, we are moving into topic number 11 now. अब हम टॉपिक नंबर 11 में मूव कर रहे हैं. Now just give me a minute. Yep. So let's start with this topic number 11, Kosi Mechi River Linking Project. So it is India's ambitious national perspective plan. ये कोसी मेची रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट जो है आपका KMRLP, इस KMRLP कोसी मेची रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट, दिस इज अ पार्ट ऑफ नेशनल पर्सपेक्टिव प्लान का ये पार्ट है. एनपीपी. एनपीपी क्या है बेसिकली? नेशनल पर्सपेक्टिव प्लान इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर्स. So this कोसी मेची रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट इज द पार्ट ऑफ नेशनल पर्सपेक्टिव प्लान. इसका पार्ट है. और की फैक्ट्स जो आपको याद रखने हैं, दिस इज इंपॉर्टेंट. द प्रोजेक्ट इन्वॉल्व्स लिंकिंग द कोसी रिवर विद द मेची रिवर, a tributary of the Mahananda River impacting the regions of Bihar and Nepal. Aims to provide annual irrigation to 4.74 lakh hectares. इसमें से 2.99 लाख हेक्टेयर बिहार में जिसको डायरेक्ट हेल्प मिलेगी. ठीक है. कंसर्न्स क्या हैं कि प्रोजेक्ट से कितना ज्यादा डैमेज होगा, ये सारी चीजें जैसे इंपॉर्टेंट, बट आप देख सकते हैं ये ज्योग्राफी है टू अंडरस्टैंड कोसी मेची लिंक. आप ऐसे भी एक बार देख सकते हैं. Now this is important. This topic is important. India Japan 2+2 ministerial dialogue. तो 20th अगस्त को एक इंडिया और जापान का 2+2 फॉरेन एंड डिफेंस मिनिस्ट्रियल मीटिंग हुई थी. अब देखिए 2+2. अब बेसिकली ये जो 2+2 मीटिंग हुई थी, इसमें बेसिकली क्या होता है कि अब एक चीज समझते हैं. इंडिया जापान 2+2 मिनिस्ट्रियल डायलॉग. 2+2 मिनिस्ट्रियल डायलॉग. अब ये कौन सा डायलॉग? फॉरेन एंड डिफेंस मिनिस्ट्रियल डायलॉग. मतलब इसमें इंडिया के
जो फॉरेन मिनिस्टर हैं और इंडिया के जो डिफेंस मिनिस्टर हैं वो पार्टिसिपेट करेंगे, और जापान के जो फॉरेन और डिफेंस मिनिस्टर हैं वो भी इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। दिस मेक्स इट 1 plus 1 equals to 2, 2 plus 2 dialogue. So it is a foreign plus defense minister का dialogue था, इंडिया के foreign affairs minister और डिफेंस मिनिस्टर से, so we all are aware। अब जब जापान के डिफेंस मिनिस्टर कौन है, मिस्टर किहारा मिनोरू, एंड फॉरेन अफेयर्स मिनिस्टर कौन है, मिस्टर कामिकावा योको। मिस्टर कामिकावा योको इज द फॉरेन अफेयर्स मिनिस्टर ऑफ जापान एंड मिस्टर किहारा मिनोरू इज द फॉरेन अफेयर्स मिनिस्टर ऑफ जापान। Mr. S. Jaishankar is India's foreign minister and Mr. Rajnath Singh is India's defense minister। तो इन लोगों की ये मीटिंग हुई थी, न्यू दिल्ली में ये मीटिंग हुई थी 20th of August 2024 को। ठीक है, इंडिया और जापान के रिलेशंस का बैकग्राउंड क्या है वो आप देख सकते हैं। Again, we have a lot of things to understand when we are discussing this particular topic। इंडिया और जापान के डिप्लोमेटिक रिलेशंस were established with April 28, 1952 को। You have to keep it in your mind। Current relations are good with Japan। इकोनॉमिक रिलेशंस कैसे हैं, तो जापान के जितने भी इकोनॉमिक पार्टनर्स हैं उसमें इंडिया का रैंक 18 है, इंडिया के जितने भी इकोनॉमिक पार्टनर्स हैं उसमें जापान का रैंक 13 है। सो दिस इज these things are important। देन वी हैव कल्चरल रिलेशंस एज वेल, तो आप वो सारी चीजें भी देख सकते हैं। अब इंडियन और जापानीज डायस्पोरा के बारे में भी आप देख सकते हैं कि जापान के कितने लोग हैं जो इंडिया में रह रहे हैं। तो एज ऑफ अक्टूबर 2023 8,197 जापानीज हैं जो इंडिया में रह रहे हैं, और 46,262 इंडियन नेशनल्स हैं जो जापान में रह रहे हैं। इसकी इंपॉर्टेंस क्या थी इस पर्टिकुलर मीटिंग की, कैन गिव इट अ रीड। आप इसे रीडिंग दे सकते हैं। फिर अलग अलग चीजें जो अलग अलग एस्पेक्ट हैं इंडिया और जापान के रिलेशन को लेकर हमने डिस्कस किया गया, सो यू कैन कवर ऑल दोस थिंग्स। Now we are moving on to the National Space Day 2024। अब एक चीज याद रखिए, नेशनल स्पेस डे इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। क्या 2024 में एक टॉपिक ऑलरेडी चंद्रयान 3 से पूछा जा चुका है, बट एक टॉपिक चंद्रयान 3 से ऑलरेडी पूछा जा चुका है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो 2025 में आपसे एक टॉपिक और पूछ नहीं सकते हैं। ठीक है, अब नेशनल स्पेस डे हम लोग कब सेलिब्रेट करते हैं, नेशनल स्पेस डे हम लोग सेलिब्रेट करते हैं 23 अगस्त को। ये फर्स्ट एडिशन था नेशनल स्पेस डे का। अब क्यों सेलिब्रेट करते हैं, क्योंकि 23 अगस्त 2023 को चंद्रयान 3 की लैंडिंग हुई थी। चंद्रयान 3 की लैंडिंग कहां पे हुई थी, साउथ पोल पे, साउथ पोल ऑफ मून पे लैंडिंग हुई थी चंद्रयान 3 को। जिस पॉइंट पे लैंड किया था उस पॉइंट का नाम था शिव शक्ति पॉइंट। ठीक है, ये इंफॉर्मेशन आप याद रखेंगे। 14 जुलाई को चंद्रयान 3 को लॉन्च किया गया था, 23 अगस्त को लैंड किया था। जिस पॉइंट पे लैंड किया था उस पॉइंट का नाम तो हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। चंद्रयान 3 के साथ में एक लैंडर और एक रोवर भी साथ में गया था। लैंडर और रोवर का भी नाम आप याद रखेंगे। लैंडर का नाम था बेसिकली प्रज्ञान, और रोवर का नाम था विक्रम। सॉरी, लैंडर वाज विक्रम, lander was Vikram and rover was Pragyan। So there is a brand called LV Louis Vuitton। So lander was Vikram and rover was Pragyan। ये चीजें आपको याद रखनी है। फिर इसके अलावा आपको याद रखना है, ये जहां पर जिस पर्टिकुलर पॉइंट पे चंद्रयान 1 क्रैश किया था उसका नाम क्या था, जवाहर पॉइंट। चंद्रयान 2 जहां पे क्रैश किया था उसका नाम था तिरंगा पॉइंट। ठीक है, इंडिया 4th नेशन बना है जो मून पे लैंड किया है। ठीक है, फर्स्ट नेशन है जो साउथ पोल पे लैंड किया। इसरो का प्रोजेक्ट था चंद्रयान 3, वाज इसरोज एम्बिशियस प्रोजेक्ट। अब नेशनल स्पेस डे का जो थीम था, द थीम इज आल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। थीम के बारे में भी डिस्कस करेंगे। सो दिस इज द थीम फॉर 2024 इंडियाज मेडेन नेशनल स्पेस डे, टचिंग लाइव्स व्हाइल टचिंग द मून, इंडिया स्पेस सागा। ठीक है, चाइना ने भी अपना एक साउथ पोल के लिए मिशन लॉन्च किया था, चांगी 6 के बारे में भी आप थोड़ा बहुत देख लेंगे प्लीज। चांगी 6 के बारे में प्लीज आप देख लेंगे। चंद्रयान 3 का जो लॉन्च किया गया था वो लॉन्च व्हीकल का नाम क्या था, एलवीएम मार्क 3। लॉन्च व्हीकल मार्क 3 से चंद्रयान 3 को लॉन्च किया गया था, इसे भी आप याद रखेंगे।
पैसिव यूथनेशिया के बारे में कुछ चीजें हम देख लेते हैं। रिसेंटली द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया डिनाइड अ पिटिशन फ्रॉम एन elderly couple seeking passive euthanasia for their comatose, deeply unconscious son who has been bedridden for 11 years following a fall. So there was a petition in the Honorable Supreme Court of India. This particular petition was filed by an elderly couple. इनका एक बेटा था that वो 11 साल से bedridden है, तो वो लोग बेसिकली इसके लिए यूथनेशिया की डिमांड कर रहे थे, पैसिव यूथनेशिया की। अब यूथनेशिया के डेफिनेशन हम देख लेते हैं एक बार। और सुप्रीम कोर्ट ने ये जो डिमांड थी ये रिजेक्ट कर दी थी। डिमांड वाज नॉट एक्सेप्टेड और एंटरटेन्ड बाय द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। नाउ यूथनेशिया रिफर्स टू द प्रैक्टिस ऑफ एन इंडिविजुअल deliberately ending their life, oftentimes to get relief from an incurable condition or intolerable pain and suffering. Now, there are two types of euthanasia: active euthanasia and passive euthanasia. Active euthanasia is just like कि आप बॉडी में किसी ड्रग को इन्फ्यूज कर देंगे जिससे आदमी की डेथ हो जाएगी। और पैसिव यूथनेशिया में आप क्या करते हैं कि जो लाइफ सपोर्ट सिस्टम होता है, जस्ट लाइक द मूवीज फ्रॉम साउथ सिनेमा में आप लोगों ने देखा होगा ना, तो बहुत होता है कि आदमी अनकॉन्शियस है, ही इज एडमिटेड इन हॉस्पिटल और चुपचाप से कोई आया और ऑक्सीजन मास्क नीचे कर दिया। तो पैसिव यूथनेशिया का मतलब क्या होता है? दैट इज अ मर्डर। बट पैसिव यूथनेशिया में होता क्या है कि आप जो लाइफ सपोर्ट सिस्टम होता है उससे विड्रॉ कर लेते हैं। एक्टिव में आप बॉडी में कोई डायरेक्ट ड्रग इन्फ्यूज कर देते हैं, ठीक है। तो दिस इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। 2018 में सुप्रीम कोर्ट का एक इम्पोर्टेंट जजमेंट है, वो आप देख सकते हैं। गाइडलाइंस आप ये भी देख सकते हैं। अगेन दिस पर्टिकुलर टॉपिक इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, यू हैव टू कवर इट विद एक्सट्रीम confidence and extreme care. So this is one topic that is also very important. Then we are discussing about unified payment scheme. Now UPS, this unified payment scheme. So government employees have welcomed the Union Cabinet decision to approve the unified pension scheme, providing assured pensions to them. So government employees were very happy with this particular scheme. अभी old pension scheme के बारे में हम देख रहे थे। 1972 में इंडिया में old pension scheme लॉन्च की गई थी और old pension scheme की जगह पे new pension scheme को लॉन्च किया गया था 2004 में, ठीक है। OPS के जो benefits हैं वो क्या क्या होंगे pension calculation। Now this is also important, how this pension will be calculated. So let's discuss about this pension calculation, percentage of last pay. So this pension was generally computed as a percentage of the last drawn salary, typically around 50% of the average of the last 10 months pay. So take this example, आपको समझने में थोड़ा सा आसानी रहेगी। आप मान लीजिए बेटा, आप किसी भी एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय का जो रिटायरमेंट था वो नवंबर 2024 में होता है। अब देखिए अब पेंशन कैसे कैलकुलेट की जाएगी कि जनवरी से लेकर के अक्टूबर, ये जो लास्ट 10 महीने थे इस एम्प्लॉय के रिटायरमेंट के पहले के, इसमें मान लीजिए इसको 10 महीने में टोटल जो सैलरी मिली वो कितनी मिली? टेक अ रफ, वी आर टेकिंग अ रफ नंबर 13,50,000। अब लास्ट के 10 महीने में जो सैलरी थी वो कितनी थी? 13,50,000 थी। अब इसका अगर आप मंथली एवरेज निकालेंगे तो क्या होगा? मंथली एवरेज विल बी 1,35,000। सो पेंशन कितना बनेगा अंडर दिस न्यू यूनिफाइड पेमेंट पेंशन स्कीम? 67,500। क्यों 67,500? क्यों? क्योंकि जो रिटायरमेंट के पहले, रिटायरमेंट से जस्ट जो 10 महीने पहले की जो सैलरी थी उसका वो जो टोटल सैलरी थी वो 13,50,000 थी। इसका एवरेज बनता है 1,35,135,000 रुपीज पर मंथ, और इसका जब आप 50% लेंगे तो बनेगा 67,500। तो इस तरीके से बेसिकली कैलकुलेट की जाएगी पेंशन। जो आपने लास्ट सैलरी विड्रॉ किया उसका 10 महीने का एवरेज निकाला जाएगा, फिर उसका 50% आपको दिया जाएगा एज अ पेंशन इन अ फॉर्म ऑफ पेंशन। अब ओपीएस के साथ में इश्यूज क्या क्या है? फिजिकल स्ट्रेन, बहुत ज्यादा गवर्नमेंट पे प्रेशर पड़ेगा, फाइनेंशियल बर्डन पड़ेगा, ये सारी चीजें हैं। तो विद दिस बेसिकली हम यहाँ पर प्रवाहिनी का जो फर्स्ट पार्ट हमने कवर किया, 15 टॉपिक हमने कवर किए। नाउ अब हम नेक्स्ट 15 टॉपिक में मूव करने वाले हैं। सो टॉपिक नंबर 15 हम यहाँ पे खत्म करते हैं। We are moving into topic number 16, सितंबर एडिशन है अभी प्रवाहिनी का हम लोग कवर कर रहे हैं। टॉप 15 टॉपिक हो चुके हैं, हम 16 टॉपिक में एंटर कर रहे हैं। So now the 16th topic that we are covering is India-US Defense Pact to deepen cooperation. This is our topic number 16. So let's discuss few things about this the Defense Pact.
Recently, India and the US have signed two key pacts, a non-binding binding security of supply arrangement (SOSA) and a memorandum of agreement regarding assignment of liaison officers. So these are two key pacts that we have signed with the United States of America. Both countries, India and US, have agreed to enhance priority co-production projects as a part of 2023 US-India Roadmap for Defense Industrial Cooperation. So these pacts are signed for the better implementation of the 2023 US-India Roadmap for Defense Industrial Cooperation. So a few important facts about the security and of supplies arrangement SOSA. The securities of supply arrangement SOSA is an agreement between India and US. India is the 18th SOSA partner of the US. So India is the 18th SOSA partner of US. It allows both nations to prioritize each other's goods and services for national defense, ensuring supply chain resilience during emergency. So this particular pact SOSA will help or allow both countries, India and United States of America, to supply goods and services on priority basis during the time of emergency or during the urgent situations. So this is one important feature about SOSA. Now let's discuss something about this MOU on liaison officer. It will start with India's deployment an officer to the US Special Operations Command in Florida. So आपको ये चीज याद रखनी that this particular MOU will start with the appointment of one Indian officer to the US Special Operations Command in Florida. अब फ्लोरिडा ही वही जगह है जहाँ पर US presidential candidate Donald Trump was 45th president of United States of America, जहाँ पर second assassination attempt किया था. ठीक है. अब सोसा वर्सेस आरडीपी, अब इसे आप 1 मिनट आप इसे एक रीडिंग दे सकते हैं. My advice would be just give it a reading. समझ में आ रहा है well and good. अगर समझ में नहीं आ रहा बहुत ज्यादा स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है. Why? Because again these are the things which are important to understand the concept, but examination point of view से there is always a difference. ठीक है. तो ये एक चीज है जो आप कर सकते हैं. What are the challenges to India-US relations? क्या क्या चैलेंजेस हैं डिफेंस की, जब हम बात करें या इकोनॉमी की बात करें तो क्या क्या चैलेंजेस हैं इंडिया और यूएस के रिलेशन में, दैट बिकम्स आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. नाउ the next important topic that we have with us is that Supreme Court ruling on SC/ST Act 1989. Recently, the Supreme Court of India made a significant ruling regarding the Scheduled Caste and Scheduled Tribe Act 1989 hearing. The court addressed a key issue whether insult, now this is important, whether insult or intimidations directed at individuals from SC and ST automatically constitute an offence under this act. This ruling came in the context of granting anticipatory bail to an editor of a YouTube channel who faced accusation under the act. What is the Supreme Court's ruling on the insults under the SC/ST Act 1989? So the Supreme Court ruled that insult or intimidations aimed at members of SCs or STs do not automatically constitute an offence under SC/ST Act 1989. So now this is one important observation that you have to keep in your mind, that the insult or intimidations aimed at members of SCs and STs do not automatically constitute. मतलब if there is an insult or intimidation at the members of SCs and STs, that will automatically not amount to an offence. This was first important thing. The second one is, for the act to apply, the insult or intimidation must be specifically linked to the caste identity of the victim. Now this becomes very important. विक्टिम की कास्ट को लेकर के कोई स्पेसिफिक इंसल्ट और इंटिमिडेशन होना चाहिए. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. नाउ अंडर सेक्शन 3 क्लॉज 1 सब क्लॉज R of the SC/ST Act 1989, the court interpreted the term intent to humiliate as needing to be closely associated with the caste identity of the victim. So the intent or the intention should be basically to insult the specific caste, then only it will amount to an offence. Now these are the things जो आपके लिए important है. आप इन्हें एक brief reading दे सकते हैं. What is the Scheduled Caste and Scheduled Tribe Act 1989? अब इस एक्ट के बारे में देख लेते हैं. So this SC/ST Act was enacted in 1989 to safeguard the member of SC and STs from a caste-based discrimination and violence. So basically to prevent the members of SC and ST community for caste-based discrimination and violence, this particular act was enacted in 1989. The primary basis of this particular act was Article 15 and 17 of the Indian Constitution that aims to ensure the protection of this marginalized community and to address the inadequacies of previous laws. So SC/ST Act का जो इमरजेंस है वो इसलिए हमारे लिए और इम्पोर्टेंट हो जाता है. The reason is very simple, कि लॉ नहीं था इंडिया में इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को एड्रेस करने के लिए, और ये जो आर्टिकल 15 और 17 है के बेटर इम्प्लीमेंटेशन के लिए दिस पर्टिकुलर लॉ वाज वेरी नीडेड. Very much needed.
अब रिसेंट अमेंडमेंट्स क्या है? रिसेंट अमेंडमेंट्स आप एक बार देख सकते हैं। ड्रॉबैक्स क्या है सीएनएसटी एक्ट पे? तो इनएडिक्वेट रिसोर्सेज फॉर स्पेशल कोर्ट, अभी स्पेशल कोर्ट एससीएसटी एक्ट में बेसिकली डिस्कस किया गया था दैट स्पेशल कोर्ट शुड बी क्रिएटेड टू टैकल द प्रॉब्लम ऑफ एससीज एंड एसटीज रिलेटेड टू द इंसल्ट एंड इंटिमिडेशंस। वो सारी चीजें हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो इन पर्टिकुलर अब देखिए कुछ इंपॉर्टेंट जुडिशियल इंसाइट्स, इसमें कुछ केसेस है जो आप देख सकते हैं। कन्नू भाई एंड परमार वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात, दिस पर्टिकुलर जजमेंट वाज डिलीवर्ड बाय गुजरात हाई कोर्ट इन 2000, आप इसे देख सकते हैं। And in this particular case, the Gujarat High Court has stated that the SC/ST Act 1989 does not apply on the crimes committed between the members of SC and ST community. तो अब देखिए अब ये केस जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सुभाष काशीनाथ महाजन वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र एंड अदर्स। This was a Supreme Court judgment in 2018. So Supreme Court clarified that exclusion of anticipatory bail provision under Section 18 of the Act does not constitute an absolute bar. So the provision Section 18 of this SC/ST Act 1989 does not cast an absolute bar on the anticipatory bail. So this is one important thing that you have to keep in your mind. Now with this we are moving into the topic, next important topic, that is topic number 18, Air Quality Life Index AQLI 2024. Recently अब देखिए कि क्या क्या चीजें आपको याद रखनी इंडेक्स से रिलेटेड। Recently the Energy Policy Institute at the University of Chicago, ये रिपोर्ट रिलीज किसने की? एनर्जी पॉलिसी इंस्टीट्यूट जो कि यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो का हिस्सा है, इसने रिपोर्ट रिलीज किया। रिपोर्ट का टाइटल क्या है? एयर क्वालिटी लाइफ इंडेक्स AQLI 2024। ठीक है, अब इसमें इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है? वेयर द एनुअल PM of 2.5 स्टैंडर्ड इज 40 UG पर मोर देन 40% ऑफ द पॉपुलेशन ब्रीथ्स एयर दैट एक्सीड्स द स्टैंडर्ड। बेसिकली आपको बस इतना याद रखना है कि इंडिया में 40% या 40% पॉपुलेशन ऐसी है जो जिस स्टैंडर्ड एयर ब्रीथ करना चाहिए वो लोग वो ब्रीथ नहीं कर पा रहे हैं। अब इम्पैक्ट क्या होता है? इम्पैक्ट क्या है एयर पॉल्यूशन का लाइफ एक्सपेक्टेंसी पे? अगर एज पर दी गाइडलाइंस सेट बाय द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, अगर हम पॉल्यूशन को रिड्यूस कर दें तो हम एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी को बेसिकली हम क्या कर सकते हैं? 1.9 ईयर से बढ़ा सकते हैं और बेसिकली हम इन टोटल 14.9 बिलियन ईयर्स ऐड कर सकते हैं, लाइफ ईयर्स ऐड कर सकते हैं। अभी करंटली जो पॉपुलेशन है दैट इज क्लोज टू 8.1 बिलियन, 810 करोड़ पॉपुलेशन है और हम हर एक इंडिविजुअल की लाइफ में 1.9 इयर्स ऐड कर सकते हैं। इन टोटल 14.9 बिलियन इयर्स ऐड कर सकते हैं अगर हम वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की जो स्टैंडर्ड गाइडलाइंस है उन्हें फॉलो करें। ठीक है, सो दिस वाज वन इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन दैट वाज मेड इन दिस पर्टिकुलर रिपोर्ट। Now, according to the report, 94 countries have established PM 2.5 standards, of which 37 failed to meet their own guidelines. Additionally, 150 countries have not set any standards at all. So there are 94 countries which have established the PM 2.5 standards, whereas 158 countries does not have this particular standard of PM 2.5. चाइना में पोल्यूशन 2014 के लेवल से अगर हम कंपेयर करें तो 41% जो रिडक्शन हुआ है एयर पोल्यूशन में चाइना में 2014 के लेवल से, और इससे जो चाइनीज इंडिविजुअल्स हैं इनकी लाइफ में एवरेज 2 इयर्स ऐड हो गया। ठीक है, द यूएस हैज रिड्यूस्ड पोल्यूशन बाय 67.2% सिंस 1970। सो यूएस में भी पोल्यूशन कम हुआ है। और बेसिकली बांग्लादेश, इंडिया, नेपाल और पाकिस्तान ये वर्ल्ड की सबसे ज्यादा पोल्यूटेड कंट्रीज में से कुछ एक हैं। म्यांमार में इसका इम्पैक्ट ये है कि लाइफ एक्सपेक्टेंसी 2.9 ईयर से कम हो गई है। तो ये सारी चीजें अब इंडियन पॉइंट ऑफ व्यू से ये सारे फैक्ट्स आपको याद रखने की जरूरत नहीं है इंडियन पॉइंट ऑफ व्यू से कि क्या क्या चीजें। AQLI इंडेक्स होता क्या है वो आप देखिए। AQLI इंडेक्स क्या होता है ये आपको देखने की जरूरत नहीं है। अब हम एयर पोल्यूशन कैसे कंट्रोल कर सकते हैं? See again, I have told you this numerous times, कुछ जनरल प्रॉब्लम्स होती हैं, कुछ जनरल सॉल्यूशंस होता है। तो अब हम एयर पोल्यूशन को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं? ओल्ड व्हीकल्स को स्क्रैपिंग, ओल्ड व्हीकल्स को स्क्रैप करने को लेकर के पॉलिसी होना चाहिए। इंडस्ट्रियल वेस्ट और इंडस्ट्रियल रिलीजेस जो होती है गैसेस के, हम उन्हें रेगुलेट और कंट्रोल करना है इन अ बेटर एंड एफिशिएंट मैनर। ये सारी चीजें, ये सारे तरीके जिससे हम एयर पोल्यूशन कम कर सकते हैं। ठीक है, followed by 5 multiple choice based questions. अब work amendment bill 2024 is really important. We will be covering this particular topic in detail. So the Parliament's Joint Committee which is reviewing the work amendment bill has so far received 800,000 petitions from the public and various institutions according to the sources.
The committee held its third meeting on September 5, 2024, where officials from 3 government ministries have participated. Now, remember this thing: Waqf Amendment Bill 2024 was brought by पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर मिस्टर किरण रिजिजू। किरण रिजिजू इस बिल को लेकर के आए थे पार्लियामेंट में, इन्होंने इंट्रोड्यूस किया था वक्फ अमेंडमेंट बिल 2024। ठीक है। Now the Ministry of Urban Affairs supported the changes, saying they would help reduce court cases. They explained that when the British government acquired 341 square kilometer of land for the new capital, compensation was paid. However, between 1970 and 1977, the Waqf Board claimed ownership of 138 properties in the New Delhi area, land leading to the long legal battles. This was challenged by some committee members as well. तो अब ये बेसिकली ये सारी चीजें जो वक्फ बिल 2024 को और ज्यादा कंट्रोवर्शियल। अब देखिए इस बिल के जो कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं उसको पहले हम देख लेंगे। सो वक्फ क्या होता है? सो वक्फ इज अ परमानेंट चैरिटेबल डोनेशन। वक्फ इज अ काइंड ऑफ चैरिटेबल डोनेशन अंडर इस्लामिक लॉ। अब इसका पर्पस क्या होता है? यूज्ड फॉर रिलीजियस और चैरिटेबल पर्पस विद इन द मुस्लिम कम्युनिटी। अब मुस्लिम कम्युनिटी के जो लोग होते हैं, इस वक्फ का मतलब होता है परमानेंट चैरिटेबल डोनेशन। सो उस कम्युनिटी के लोगों के लिए डोनेशंस का यूज किया जाएगा। आप किसी भी तरीके का डोनेशन कर सकते हैं अंडर वक्फ बिल। आप किसी भी तरीके का डोनेशन कर सकते हैं, और एक बार अगर आपने डोनेशन कर दिया तो आप उसे दोबारा रिक्लेम नहीं कर सकते हैं। Once the property is donated to a waqf, it cannot be reclaimed by the victim, or it cannot be reclaimed by the person who have donated that specific property to a waqf. अब देखिए की रोल्स क्या होते हैं? वाकिफ, द डोनर हु मेक्स द डोनेशन। अब जो डोनेशन देता है उसको हम क्या बोलते हैं? वाकिफ। ठीक है। और उस प्रॉपर्टी को मैनेज करने के लिए जिससे अपॉइंट किया जाता है उसे हम बोलते हैं मुतावली। मुतावली प्रॉपर्टी को रेगुलेट करता है, मैनेज करता है, और वाकिफ होता है जो उस प्रॉपर्टी को डोनेट करता है। अब ट्रस्टी का रोल क्या है? उस प्रॉपर्टी को ओवरलुक करना, उससे जो इनकम जनरेट हो रही है तो उसी में से उसका एक छोटा सा पोर्शन एज अ कॉम्पनसेशन दे दिया जाता है उसी मुतावली को। ठीक है। अब ये वक्फ के ओरिजिन से रिलेटेड चीज है, इसको आप खुद से कवर कर सकते हैं कि वक्फ का ओरिजिन क्या हुआ था। इस चीज को आप अपने हिसाब से अपनी बेटर अंडरस्टैंडिंग के साथ कवर कर सकते हैं। बस एक प्रॉपर रीडिंग लीजिएगा, उसके अलावा कुछ भी बहुत ज्यादा आपको डिटेल में पढ़ने की जरूरत नहीं। हाँ, अब इस पर्टिकुलर टॉपिक, इस पर्टिकुलर पॉइंट को आपको बहुत डिटेल में कवर करना है अबाउट द वक्फ अमेंडमेंट बिल 2024। नाउ द वक्फ अमेंडमेंट बिल 2024 वाज इंट्रोड्यूस्ड इन द लोक सभा ऑन 8 अगस्त 2024। तो 8 अगस्त 2024 में को ये बिल इंट्रोड्यूस किया गया था, एंड दिस बिल विल मेक चेंजेस इन वक्फ एक्ट 1995। जो 2024 में वक्फ अमेंडमेंट बिल 2024 आया है, ये वक्फ एक्ट 1995 में चेंजेस करेगा। और इंडिया में वक्फ बोर्ड जो है वो सारी वक्फ प्रॉपर्टीज को मैनेज करता है। अब वक्फ इज वेल प्रॉपर्टी इधर मूवेबल और इमूवेबल। अब आप एक चीज ये भी याद रखिएगा कि वक्फ को आप दोनों ही तरीके की प्रॉपर्टीज को डोनेट कर सकते हैं, मूवेबल और इमूवेबल। बस आप उन्हें दोबारा क्लेम नहीं कर सकते हैं। दिस इज वन डिसएडवांटेज। एक बार आपने प्रॉपर्टी दे दी ना, तो आप उसके बाद फिर चाहे जितना सर पे कीजिए, आप वक्फ से प्रॉपर्टी दोबारा रिक्लेम नहीं कर सकते। The law requires each state to set up a waqf board to take care of waqf properties. The bill proposes to rename the law to the United Waqf Management, Empowerment, Efficiency and Development Act 1995. Now this is the most relevant information that you have to keep in your mind, that this Waqf Amendment Bill 2024 proposes to change the name of 1995 एक्ट। अब 1995 में जो एक्ट आया था उसका नाम बदलने की बात चल रही है। अब इस एक्ट का नाम क्या हो जाएगा? यूनाइटेड वक्फ मैनेजमेंट, एम्पावरमेंट, एफिशिएंसी एंड डेवलपमेंट एक्ट 1995। अब वक्फ का फॉर्मेशन कैसे होता है? द ओरिजिनल लॉ अलाउड वक्फ टू बी फॉर्म्ड इन 3 ways: बाय डिक्लेरेशन, बाय लॉन्ग टर्म यूज एंड बाय इनहेरिटेंस। अब ये 3 तरीके थे जिससे वक्फ फॉर्म हो सकता है। अब ये सारी चीजें आपको याद रखनी है। द बिल सेज ओनली अ मुस्लिम हु हैज पार्टिसिपेटेड हु हैज प्रैक्टिस्ड इस्लाम फॉर एटलीस्ट 5 years कैन डिक्लेयर अ वक्फ एंड दे मस्ट ओन द प्रॉपर्टी बी डिक्लेयर्ड। अब जो 2024 में अमेंडमेंट बिल आया, इसने ये बोला कि सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम से प्रॉपर्टी को वक्फ को डोनेट कर सकते हैं। और मुस्लिम कौन होगा? जो मिनिमम उस प्रॉपर्टी की डोनेशन से 5 साल पहले, मतलब अगर आप 2024 में प्रॉपर्टी डोनेट कर रहे हैं तो आप 2019 से लेकर के 2024 तक आप प्रैक्टिसिंग मुस्लिम होने चाहिए, तभी आप उस प्रॉपर्टी को वक्फ को डोनेट कर सकते हैं। एंड if you are not the rightful owner, if you are not the lawful owner of that particular property, you cannot declare or
डोनेट दैट पर्टिकुलर प्रॉपर्टी टू अ वक्फ। अब बहुत सारी इंडिया में ऐसी गवर्नमेंट प्रॉपर्टीज थी जिन पे बेसिकली वक्फ ने क्या बोला था कि ये सारी प्रॉपर्टी वक्फ को बिलोंग करती है। टेक वन एग्जांपल, हैदराबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का जो ऑफिस था, उसको भी वक्फ बोर्ड ने क्लेम किया कि ये भी हमारी प्रॉपर्टी है। तो ये सारी चीजें हैं। अब वक्फ बोर्ड के बारे में कुछ चीजें देख लेते हैं। द लॉ अलाउज अप टू 2 members each from Muslim MPs, MLAs, MLCs and bar council members to be elected to the board. The bill gives the state board the power to nominate one person from each category and they don't need to be Muslim. Now this is the most controversial thing that till date अभी तक सिर्फ मुस्लिम्स को ही वक्फ बोर्ड में इंक्लूड किया जा सकता था, बट 2024 में जो अमेंडमेंट आया, इस अमेंडमेंट के हिसाब से एक जो नॉन मुस्लिम है उससे भी हम वक्फ में क्या कर सकते हैं, नॉमिनेट कर सकते हैं। और फिर अपील्स वगैरह जो जाएंगी वो कैसे डील होंगी उसके बारे में देख सकते हैं। मुस्लिम लॉज इन इंडिया, ये आप चाहे तो देख सकते हैं। मुगल एम्पायर वगैरह, ये तो दैट इज पार्ट ऑफ स्टैटिक चीजें, तो आप उससे भी देख सकते हैं कि आप करंट का टॉपिक कवर करते हैं, स्टैटिक का टॉपिक कवर करेंगे तो आपको एक चीज बढ़िया आपके साथ में एक चीज ये हो जाएगी कि आपको पता रहेगा कि जो स्टैटिक जी के पूछा जाता है एडवांटेज एग्जामिनेशन में, वो मोस्टली जो आपका करंट रेलेवेंट टॉपिक होता है उसी से पूछा जाता है। तो आप यहाँ पे अगर स्टैटिक जी के पढ़ लेंगे तो आपको बेसिकली वो सारी इंपॉर्टेंट चीजें जो करंट कॉन्सेप्ट में इंपॉर्टेंट है वो आपको पता चल जाएगा। फिर यूपीएस वर्सेस एनपीएस वर्सेस ओपीएस वाला जो कॉन्सेप्ट है, ये अभी हमने टॉपिक नंबर 15 में ऑलरेडी कवर कर लिया है, यूनिफाइड पेंशन स्कीम को, तो उसको हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। अगर आप एक कंपैरेटिव स्टडी करना चाहते हैं दैट व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ यूनिफाइड पेंशन स्कीम, अ न्यू पेंशन स्कीम एंड ओल्ड पेंशन स्कीम, तो वो सारी चीजें आप यहाँ पे कंपैरिजन के थ्रू कवर कर सकते हैं। और एक चीज यूपीएस के बारे में, यूनिफाइड पेंशन स्कीम के बारे में आपको एक चीज याद रखनी है, यूनिफाइड पेंशन स्कीम का जो रनिंग पीरियड है वो स्टार्ट होगा 1 अप्रैल 2025 से, ठीक है। सो ये यूपीएस के बारे में चीजें हैं। एमपीएस 2004 में इंट्रोड्यूस किया गया था, ओल्ड पेंशन स्कीम को रिप्लेस करा था एमपीएस, तो ये सारी चीजें आप कर सकते हैं। फिर क्वेश्चंस आप कवर करेंगे तो टॉपिक आपका होलिस्टिकली कवर हो जाएगा। अब ये विनेश फोगाट का जो आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग्स चला था कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन फॉर स्पोर्ट्स में, वो भी चीज आप कवर कर सकते हैं। कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन फॉर स्पोर्ट्स जो बेसिकली दिस इज वन ट्रिब्यूनल जहां पर बेसिकली क्या होता है कि जो स्पोर्ट्स से रिलेटेड मैटर होते हैं उनकी हियरिंग होती है, ठीक है। अब एक चीज आप लोग और याद रखिए, अभी हम लोग इस चीज को होलिस्टिकली कवर करेंगे। तो कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन फॉर स्पोर्ट्स ये 3 प्राइमरी बेंचेस हैं, एक लॉस एंजेलिस स्विट्जरलैंड में है, एक सिडनी में है और एक न्यूयॉर्क में है। कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन फॉर स्पोर्ट्स जिस भी ईयर में, ओलंपिक ईयर में जहां पर ओलंपिक्स हो रहे होते हैं वहां पर अपना एक टेम्परेरी बेंच क्रिएट करता है। तो इस बार पेरिस में ओलंपिक्स से तो पेरिस में एक टेम्परेरी बेंच क्रिएट किया गया था। 3 प्रिंसिपल बेंचेस हैं, लॉस एंजेलिस, सिडनी एंड न्यूयॉर्क में। इंडिया की तरफ से मिस्टर हरीश साल्वे जो एडवोकेट है, इन्होंने रिप्रेजेंट किया था विनेश फोगाट को। और विनेश फोगाट का जो बेसिक क्लेम था सिल्वर मेडल को लेकर के, उसे रिजेक्ट कर दिया था कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन फॉर स्पोर्ट्स ने। विनेश फोगाट का इशू क्या था कि मैच बाउट के पहले जो इनका फाइनल बाउट होना था उसके पहले जब इनका वेट किया गया तो 50 kg कैटेगरी में पार्टिसिपेट कर रही थी, बट ये 100 ग्राम से ओवरवेट थी। फिर बहुत सारे रीजंस थे कि मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट हो गया था, उसकी वजह से बॉडी फ्लूइड ज्यादा रिटेन कर रही थी। ये सारे रीजंस थे। कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन फॉर स्पोर्ट्स से रिलेटेड हमने चीजें कवर कर ली। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे मूव करते हैं, हिंडनबर्ग रिपोर्ट। अभी हिंडनबर्ग ने फिर से एक रिपोर्ट रिलीज की थी, उसके वी चीफ है एमएस माधवी बुश, उनके अगेंस्ट एक रिपोर्ट रिलीज किया गया और उस रिपोर्ट में बेसिकली हिंडनबर्ग ने ये क्लेम किया कि इन्होंने बहुत अनऑथराइज्ड तरीके से बहुत सारा पैसा कमाया शेल कंपनीज के थ्रू, अडानी कंपनीज में इन्वेस्ट करके। अब एक चीज आप लोग याद रखिएगा, हिंडनबर्ग रिसर्च वाज फाउंडेड इन 2017 by Nathan Anderson. So Hindenburg Research was basically a US-based research investment research firm. US-based investment research firm है, 2017 में एस्टैब्लिश किया था इसे नेथन एंडरसन ने।
जनवरी 2023 में सबको पता है कि एक हिंडनबर्ग रिपोर्ट जब रिलीज हुआ था, तो उस टाइम पे अडानी की जितनी भी कंपनीज हैं, गौतम अडानी की, उनके अगेंस्ट रिपोर्ट रिलीज किया गया था। उस रिपोर्ट के रिलीज होते ही जो ग्रुप का पूरा वैल्यूएशन था अडानी ग्रुप का, वो $150 बिलियन से कम हो गया था। और जब ये रिपोर्ट पब्लिश की गई थी उस टाइम पे अडानी वाज द थर्ड रिचेस्ट पर्सन इन वर्ल्ड, और इस रिपोर्ट के रिलीज होते ही 3 से 30वें नंबर पे पहुंच गया था मिस्टर अडानी। तो इतना ज्यादा इम्पैक्ट हुआ था इस रिपोर्ट का, बट इस बार इतना कुछ मेजर इम्पैक्ट नहीं हुआ इस रिपोर्ट का, बिकॉज मिस माधवी बुश वाज द चेयरमैन ऑफ सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, शी केम ऑन क्लीन। उनके पास हर एक चीज का प्रॉपर एक्सप्लेनेशन था, ठीक है, उनके पास रीजंस अवेलेबल थे। फिर सेबी का एस्टैब्लिशमेंट हुआ था 12 अप्रैल 1988 को, आप ये चीज भी याद रख सकते हैं, दैट द सेबी वाज एस्टैब्लिश्ड ऑन अप्रैल 12 1988। अब यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में भी डिस्कस करते हैं। सो while delivering his speech from the Red Fort on the auspicious day of Republic Day, Prime Minister Narendra Modi has said that this is the right time that when India should adopt a uniform civil code. And in India, Uttarakhand became the first state in India. Uttarakhand became the first state in India to adopt a uniform civil code. Now, Article 44 of the Indian Constitution, Article 44 of Indian Constitution Article 44 of Indian Constitution clearly states that every state in India shall endeavor to secure a uniform civil code for its state. और जो Article 44 है, it basically talks about uniform civil code. It falls under the Chapter 4, which is DPSP, Directive Principle of State Policy. Directive प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के अंडर फॉल करता है, ठीक है। उसके बारे में आप कवर कर सकते हैं। और हर एक स्टेट को बेसिकली मेक श्योर करना है कि उनके स्टेट में एक यूनिफॉर्म सिविल कोड हो। और फिर वन नेशन वन इलेक्शन की भी बात की थी नरेंद्र मोदी ने फ्रॉम द रेड फोर्ट, तो आप वो चीज भी देख सकते हैं। वन नेशन वन इलेक्शन को हम एज ए सेपरेट टॉपिक ऑलरेडी क्लासेस में कवर कर चुके हैं। कमेटी फॉर्म कब की गई, कमेटी के चेयरमैन मिस्टर रामनाथ कोविंद, फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, उन्होंने हेड किया था। रिपोर्ट भी सबमिट हो गई है, ठीक है। अब देखिए हम लोग ये चीज ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। Indian Constitution guarantees the religious freedom under Article 25 to 28, but also suggests that the government should make laws that apply to everyone. Article 44. तो ये चीजें इंपॉर्टेंट है। और इंडिया में पहला स्टेट कौन सा है जहां पे ये यूनिफॉर्म सिविल कोड जैसी चीज एग्जिस्ट करती है? सो गोवा। बट गोवा में वो यूनिफॉर्म सिविल कोड नहीं, इट इज पोर्चुगीज सिविल कोड। पोर्चुगीज सिविल कोड 1867 है गोवा में। सो ये भी चीज आप लोग याद रखिएगा। गोवा इज द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया टू हैव अ पोर्चुगीज सिविल कोड, एंड उत्तराखंड इज द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया टू हैव अ यूनिफॉर्म सिविल कोड फॉर इट्स सिटीजन। अब आर्ग्यूमेंट्स फॉर एंड अगेंस्ट में जो है वो आप देख सकते हैं। करंट स्टेटस क्या है? 21st लॉ कमीशन का रिपोर्ट है, उसका एक आप रिकमेंडेशन है वो देख सकते हैं। If UCC is introduced, provide an option for individuals to choose whether to be bound by it or not. So this is one statement which was made by Dr. Bhimrao Ambedkar while having a debate on uniform civil code कि अगर हम यूनिफॉर्म सिविल कोड पे भी स्टेट लेकर के आ रहे हैं तो उस स्टेट को ये ऑप्शन देना होगा अपने लोगों को कि वो चाहते हैं कि उन पे एप्लीकेबल हो या ना हो। दैट शुड बी लेफ्ट ऑन द इंडिविजुअल्स। So this is one important thing that you can cover. Then Article 44 हम already cover कर चुके हैं, फिर आर्गुमेंट्स आ गए फेवर में। मद्रास हाई कोर्ट का एक जजमेंट है जिसमें बेसिकली ये बोला गया है कि जो आइडल्स होते हैं द मदुरई
Bench of the Madras High Court has ordered the reopening of the Sri Mathalaman or the Sri Mariamman Temple in Uthapuram village of Madurai district. The decision came after Justice J.R. Swaminathan reviewed the petition from G. Pandi, who wanted the local authorities to allow the temple to open for daily rituals and worship. Local administration has closed the temple, but they claimed this was done by the Piliamet community themselves, not by an official order. They also said that temple is a public place not controlled by HRMC department, and that anyone regardless of caste can worship where they have joined in the annual festivals. The court ruled that a temple should not be closed indefinitely, just like inmates of prison. As their needs met, the deities in temples also deserve to be worshipped with proper rituals. तो बेसिकली एक लिविंग पर्सन का स्टेटस दे दिया गया है अब टेम्पल्स में जो मूर्तियां रखी होती हैं, और कोर्ट ने रीजन क्या दिया कि जिस तरीके से जो लोग जेल में बंद होते हैं उन्हें भी वंस इन अ व्हाइल हम क्या करते हैं कि मिलता है उन्हें मौका, कोई जेल नहीं है। जैसे जेल में जो लोग रहते हैं उनकी बेसिक नेसेसिटीज मेट होती हैं, उसी तरीके से जो एक मंदिर में एक डाइटी होती है, जो एक आइडल होता है भगवान का, उसको भी डे टू डे और डेली प्रैक्टिसेस एंड वर्शिप्स की जरूरत रहती है। तो इस वजह से उसको एक लीगल स्टेटस दे दिया गया, juristic person. Now what is a juristic person? So legal, so there is a difference between a living person and a juristic person. So living person we all know, हम सब लोग जो है living person है, but juristic person ऐसा जरूरी नहीं है कि एक living person ही हो। जैसे जो बहुत सारी कंपनीज इंडिया में जो रजिस्टर्ड होती है, ये सब क्या कंपनीज क्या है, juristic person है। और फिर 2017 आई गेस 2017 या 2018 में उत्तराखंड हाई कोर्ट का एक जजमेंट था जिसमें उन्होंने गंगा रिवर को एक लिविंग पर्सन डिक्लेयर किया था। ठीक है, जुरिस्टिक पर्सन और जो आइडल्स होते हैं इन्हें भी हम जुरिस्टिक पर्सन मानते हैं। जुरिस्टिक पर्सन का एक बहुत इंपॉर्टेंट फीचर ये होता है कि दे कैन सू एंड कैन बी सूड, दे कैन सू एंड कैन बी सूड। दिस इज वन इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ जुरिस्टिक पर्सन। ठीक है, अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे मूव कर रहे हैं। फाउंडेशन डे ऑफ पुडुचेरी। फर्स्ट जुलाई को हम फाउंडेशन डे सेलिब्रेट करते हैं पुडुचेरी का, दैट इज इंपॉर्टेंट फॉर अस। गैलेंट्री अवार्ड्स के बारे में फिर आप देख सकते हैं कि अशोक चक्र, परमवीर चक्र, फिर अशोक चक्र और परमवीर चक्र और महावीर चक्र। इंडिया का हाईएस्ट गैलेंट्री अवार्ड इज परमवीर चक्र, देन महावीर चक्र एंड देन वीर चक्र। दीज आर इंडियाज हाईएस्ट गैलेंट्री अवार्ड्स जिनके बारे में आप कवर कर सकते हैं। अब दो कैटेगरीज होती हैं, गैलेंट्री ऑन द फेस ऑफ द एनिमी, गैलेंट्री अदर देन द फेस ऑफ द एनिमी। तो ये दो कैटेगरीज होती है जिनमें अवार्ड्स दिए जाते हैं। ठीक है, तो आप ये चीज को भी दिमाग में रख सकते हैं। This 10th edition of Mitra Shakti exercise between the armies of India and Sri Lanka, 10th edition था, एक्सरसाइज का नाम था मित्र शक्ति, मिलिट्री एक्सरसाइज थी, इंडिया और श्रीलंका के बीच में थी। कहाँ पे हुई है? आर्मी ट्रेनिंग स्कूल मदुरई में हुई है, श्रीलंका में एक्सरसाइज हुई है। 12 से 25 अगस्त 2024 के बीच में एक्सरसाइज हुई है। तो ये सारी चीजें भी आप देख सकते हैं। 10th एडिशन था, पार्टिसिपेंट कौन कौन थे? इंडिया और श्रीलंका के आर्मी थे। नेशनल फिल्म अवार्ड, 70th नेशनल फिल्म अवार्ड्स भी अगस्त 2024 में दिए गए। मलयालम फिल्म ड्रामा अट्टम वाज अवार्डेड बेस्ट फीचर फिल्म। सो अट्टम को बेस्ट फीचर फिल्म का अवार्ड मिला है। ऋषभ शेट्टी जो कन्नड़ा फिल्म इंडस्ट्री से रिलेटेड है, उन्हें बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला है। नित्या मीनन, मानसी पेरक को बेस्ट एक्ट्रेसेस का अवार्ड मिला है। अवार्ड्स को 1954 में स्टैब्लिश किया गया था। सेरेमनी कोविड-19 के टाइम पे डिले हो गई थी बिकॉज ऑफ अ वेरी रीजन दैट वी ऑल नो, कोविड-19 था, इस वजह से 2 साल तक सेरेमनी नहीं हो पाई थी। आपको नहीं 7
को सबसे ज्यादा अवार्ड्स मिले। पोनीत सेल्वन पार्ट 1 को सबसे ज्यादा अवार्ड मिले 78 फिल्म अवार्ड्स पे। नेशनल फिल्म अवार्ड पे टोटल 4 अवार्ड मिले पोनीत सेल्वन 1 को। और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इन अवार्ड्स को प्रेजेंट करता है, आप ये भी याद रखिए। फिर सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया रिलेटेड जो भी चीजें हैं वो आप कवर कर सकते हैं, जैसे हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं दूसरे टॉपिक, इसमें दोबारा करने की जरूरत नहीं, इससे ज्यादा ओवरलैप। INS Arighad. अब now INS Arighad is important. India's second nuclear powered ballistic missile, INS Arighad. So this is India's second nuclear powered ballistic missile. इसका नाम है INS Arighad. पहली थी INS Arihant, जिसे 2018 में इंडक्ट किया गया था, कमीशन किया गया था। उसके 6 साल बाद दूसरा न्यूक्लियर पावर बैलिस्टिक मिसाइल INS Arighad इसे हमने इंडक्ट किया है। न्यूक्लियर वेपन कोई लैंड, एयर और सी तीनों में लॉन्च कर सकता है। इंपॉर्टेंट फीचर्स क्या हैं? ये 15 मिसाइल को कैरी कर सकता है। 83 मेगावाट का प्रेशराइज्ड लाइट वाटर रिएक्टर भी इसके अंदर है। अब इसके फीचर्स, आर्मामेंट क्या क्या चीजें इसके अंदर है। So 4 large barrel tubes have been installed, K-15 missiles have been installed और इसका रेंज कितना है? 700 किलोमीटर, 700 किलोमीटर इसका रेंज है, ठीक है। So with this we have completed this वीडियो सेशन ऑफ प्रवाहिनी। सितंबर एडिशन का अगस्त के करंट अफेयर्स हमने कवर की। बहुत सारे इंपॉर्टेंट इवेंट्स हुए अगस्त 2024 में, एग्जॉस्टिवली कवर करना है, किस चीज को कैसे कवर करना है हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। So with this, I guess we can wrap up this session. अगर आप लोगों के कोई भी क्वेश्चंस रहते हैं तो आप अपने कमेंट सेक्शन में प्लीज पंचिंग कर सकते हैं। We will definitely come back with the answers of those questions. So thank you so much for watching this video. We'll meet you in another session of प्रवाहिनी। Till then, bye bye, take care। और आप लोग प्लीज अपने एग्जामिनेशंस की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए। क्लैट एंड एलिट के स्टूडेंट्स से मेरा स्पेशल रिक्वेस्ट है, you just have like 70 to 80 days आपके एग्जाम में और बचे हैं, so give it a last push, एक लास्ट पुश और दीजिए और एग्जाम क्रैक करिए, ठीक है। So on this note, we will wrap up this session. Thank you so much for watching this analysis, and do like this particular video and subscribe to Success Mantra Digital channel. Thank you so much.